Rahul, you tell me, just give me a go ahead and then I'll start. Right, okay. Good morning, everybody. My name is Dr. Abhilasha. Many of you already know my introduction. However, I'll introduce myself all over again. I'm Dr. Abhilasha. I've done my PhD from IIT Delhi. I have done my MBA from IIM Raipur. I'm currently teaching here, serving in SOL in the Management Studies Department, and I'm a faculty for strategy course, right? So those who have taken a strategy course in the previous semester, considering it was mandatory, they know me. However, since we have some students who attend the class for the first time, I thought it is important. So first of all, tell me, have you studied anything to do with strategy in semester 1? Did you? Achha, it will be a very interactive class, all right? Interactive matlab mujhse. So did you learn any course in strategy in semester 1? No? Semester 2? That was in third sem. Semester 2? No, right. So why is strategy in the third semester, that is when you have entered the second year? So why is this course in your second year? There must be a reason behind it, right? It was not in the first year. Why? Because when we study strategy, it is expected that you have gained sufficient knowledge to form a base. Strategy is something, even when you will start working, it will be required when you will be engaged into strategy making, once you will be at a certain higher position. We all are expecting to be there. I'm sure some of you are already there. So in the third semester, we studied strategic analysis, right? I'm assuming that you had a good exam. How many expecting good marks? So do you want me to discuss the question paper? No? No? Just in case. Huh? Was it difficult? Was it? Really? I'll tell you, there's a direct correlation between people who have attended the classes and given the exams. There's a direct correlation also between the handwriting, who have studied, and their handwriting. Those who have studied, they write beautifully, underline, black, red. And those who have not, they think कि लिख देते हैं, जो चेक कर रहा है वो तो ऐसे ही आ गए ना, उन्हें तो पता ही नहीं क्या लिखा है. However, these questions were very, very direct. These were based, madam, it's just a matter of 2 hours. So these questions were directly from the units, and they were just, if you had basics about it. For instance, we'll not discuss the case study because most of you, I'm sure you've done pretty well in this. However, let's just quickly discuss part B. The first question was about analyzing the macro environment. The second question was about blue ocean strategy. So blue ocean strategy, it was not about ocean. Right, no? Good. Then there was a question of strategy gap analysis. Then the fifth question was about sustainable competitive advantage. The sixth one was about cost leadership and broad differentiation strategy. So when we talk about cost leadership, is it anything to do with the leadership of an organization? Chalo. Then this last question was product and market diversification strategies, right? We'll not dwell into this any further. I think the foundation is laid. Most of you have pretty good knowledge about it. So in third sem, we studied strategic analysis. Now we'll be studying strategic management, right? Sir, what I had already mentioned in the class that it is not an English exam. What I was expecting was that even if you know the crux of it,
and probably with an example is good enough. However, whatever we'll, since the exam is over, whatever queries that we'll have, we'll entertain them after the class. Considering there's a paucity of time, I would like to quickly, come up with this, this course now. So in this particular lesson, we'll be studying about understanding strategic analysis to strategic management, strategic design of organizational structure, process and management systems, role of culture, basis of strategic performance management, and then we have a case study. So when we talk about strategic analysis, this is all that we covered, right? There were 5 units in which we understood strategic analysis. When we talk about strategic analysis, it means figuring out what the problem is, right? Is it a problem based on a macro environmental level, regulations, or is it something to do with the internal resources? So in the macro, we learned about PESTEL. In internal, we spoke about, we discussed about resources, capabilities, and we talked about blue ocean strategy. We spoke about cost leadership, product differentiation, so on and so forth, right? But now when we'll be discussing strategic analysis, strategic management, enough of discussing the problem. Now, when we talk about strategic management, it is about coming down to a solution. Yes, there is a problem. Our product is not being sold. Now, what is the solution? Analysis is कि मेरी क्लास के बच्चे बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं. अब वो solution निकालेंगे कि हम डांटेंगे, right? This is solution. Similarly, when there is a market, there is some, for example, मैगी का केस तो सबको पता ही है, बीच में बंद हो गई थी, वापस आई, they analyze the market, why is it shut, and then they revamp their strategy, they remade their strategy, and they implemented it henceforth, right? So this is what we'll be discussing. Now one more thing I want to, yes please. हाँ जी. ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है? See, there are labs, right, who have done the due diligence on it. It is not that कि मैगी one day एक दिन shut हो गया और एक दिन वापस से चालू हो गया. There is an organization जहाँ से they get the trademark, they get FSSAI जहाँ से इनको licenses मिलते हैं, and that is how they started their further production, right? Achha, one more thing. Now people are in 4th semester, right? So this is probably the last time if you're not planning to go further with, getting any other degree. हाँ हाँ सही है एकदम. समझ नहीं रहा है ना वो आपका फ्रेंड. अब आगे आ जाओ, आप एक काम करो, आ जाओ कोई भी आ जाओ. मेरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए अब, नहीं तो यू कैन गो आउट. So since you guys are in 4th semester, you are the senior most batch, you understand that, right? This behavior is not expected, first of all. Secondly, इसके बाद शायद से, I don't know how many of you are planning to study further. Quite possible this is your last degree, right? Are we clear on that? ज़रूरी नहीं है इसके बाद आप और कोई डिग्री करेंगे. Probably this is the last one. This is the time, इसके बाद में you'll be working, right? या तो अभी आप काम कर रहे हैं, you will switch your job, or you will have your own startup, or you will take up a job. This is the time that you need to enhance your skill set. Why should anyone employ you? ठीक है, ये हम MBA कोर्स है, Masters in Business. कीवर्ड क्या है इसमें? बिजनेस. ठीक है, या तो आप किसी के बिजनेस को ज्वाइन करेंगे जिसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, टाटा का बिजनेस है, शायद आप उसको ज्वाइन करेंगे, या आप खुद का कोई बिजनेस लेकर आएंगे. यू कांट टेक दिस सेमेस्टर लाइटली, नॉट विद रिस्पेक्ट टू coming here and taking the classes, but with respect to your life. Enhance your skill set so that you are employable or you are good enough to have your own thing. अभी ठीक है 3 सेमेस्टर निकल गए हैं हंसी खुशी में, अच्छा रहा, बहुत बढ़िया. But now this is the time, क्योंकि इसके बाद अगर आप लोगों को you will not be placed, then it's of no use, right? Your precious 6 months of your life will go down the drain. It is for everyone.
ठीक है, स्पेशली गर्ल्स, ये आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल टाइम है, इसको हंसी मजाक में मत लो। जॉब करना है आगे, यू ऑल हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, राइट? इन्हांस योर स्किल सेट, AI यूज़ करना सीखो, ChatGPT यूज़ करना सीखो, नए नए तरीके से प्रेजेंटेशंस बनाना सीखो, लर्न, यूट्यूब हैज़ एवरीथिंग। सो नाउ गोइंग फर्दर विद द कोर्स, किसी को लगे ज़्यादा ज्ञान हो रहा है तो टोकना मत, बाहर चले जाना, ठीक है? Because considering this is my profession, ज्ञान will come very naturally, all right? So, strategic analysis to strategic management. What do we do? So in strategic analysis, we tried. I will give you all the presentations. Don't bother. मैंने पहले भी दी थी presentations, सबको मिल गई थी, मैं ये दे दूँगी, ठीक है? So what we do in strategic analysis, right? We try to gather the information. Probably when you guys would, you're probably your first project when you will join somewhere, they will ask you to analyze the market. What is the demand? What is the consumer insight? You will gather the data. कि यहाँ पे क्या चीज़ है जो टॉप ऑफ द शेल्फ से लोग परचेज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन में क्या इशू है. दिस इज़ हाउ वी gather the insights. This is where the strategic analysis lie. Strategic formulation, problem है. Now we will develop a strategy around it, right? We will set the goal. A goal is something कि हमारी clarity होनी चाहिए ना लाइफ में कि आज से 6 months के बाद where do we see ourselves? We can't be कि हाँ देखेंगे 6 महीने के बाद में यहाँ डिग्री हो जाए, एक मिल जाए हमें पेपर, उस पर लिखा हो हाँ MBA हो गया, हम तब सोचेंगे कि अब करना क्या है इसका. नहीं, you have to strategize right now. Because I'm telling you with my personal experience, I've been a student myself, right? I've been on that side. I've also, I don't know, many of you know that I've also done another master's in philosophy. I was sitting right where you guys are sitting. I did it from here in Satyakam Bhavan, my classes used to be. So that was an add-on thing. However, what I'm trying to make a point here is that I have been on the other side and I understand that as a student, what these girls were doing, I have done. Chit-chatting my way, somebody telling me, please shift, I'm copy-pasting. However, later on in your life, you understand that these are the little nitty-gritties that really matter, right? So, strategic formulation. So, when I talk about strategic formulation, it is about goal setting. It is about resources. An organization has certain resources. For example, sir, you have a startup and you are into imitation jewelry, right? You have certain resources with respect to maybe the capital that you have, the working capital that you have. You are a wholesaler and you have to retail it to the people, right? People take it from you. What is your resource? Your resource is already asset that you have and the capital that you own at the moment, right? आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो? क्या आप इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लोगे या आप उसको इस तरह से you will reserve it, you will wait for your retailers to buy from you, you will get the capital and then you will deploy it further. So this is how you allocate your resources. This is how you formalize a strategy. This is a crude example where I spoke about a personal business. Similarly, if you're working somewhere also, if you have a team, your team members will be your resource. How you deploy them? Not everyone is good in everything, right? Probably some of your team members would be good in strategy formulation, someone would be good in executing it. Someone would be good in documentation. So as a senior, when you will have a team, you have to ensure that all your team members are deployed in a way so that that resource is utilized in the best possible way. Then comes strategic implementation. So for implementing a strategy, it is evident, right? We need to have an action plan. कि आज हम from this day to this day ये हमारा एक गोल है, हम इस तरह से स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करेंगे, हमने ऐसे सोचा है, हम इतना मार्केट कैप्चर करेंगे, हमारा ये टैट रहेगा, ये टर्न अराउंड टाइम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करते हैं, सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट इफ़ वी बाय सम मेडिसिन, अगर जो उसमें थोड़ी बच जाती हैं मेडिसिन, राइट, वो हम वापस कर सकते हैं शॉप पे. यू नो दिस राइट कि इफ़ इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कम अगर वो एक्सपायर नहीं हो रही है तो देर इज़ अ होल, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, बट देर इज़ अ होल मार्केट जो हम लोग वापस कर देते हैं मेडिसिन,
शॉप पे, उसको वो लोग वापस ले जाके जिनकी कंपनीज होती है उनको मेडिसिन वापस जाती है, एंड इट्स अ ह्यूज मार्केट. I would appreciate if you guys Google about it, because there are companies जो आपने जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एक शॉपकीपर हूँ, आई हैव अ स्टोर एंड इज अ कस्टमर, दवाई खरीदी, मुझे वापस दे दिया, मैंने लिया, मेरे पास एक कोई एजेंट आएगा, मुझसे वो 20% पे लेके जाएंगे, ठीक है, एंड मुझे अगर 100 रुपये की दवाई है तो आई गेट 80, और फिर ऐसे वो रिटर्न हो जाती है. So this is how the strategy is implemented, right? That they know that, I'm sorry, one second. Yeah, if you have. कौन गाली दे रहा मुझे तुम्हें? Thank you so much. So when I'm giving you these examples, आप लोगों को इस ट्राई करना चाहिए. What if you guys do the same thing? It's a business, right? आप 100% में आप कस्टमर से ले रहे हैं, एंड आगे आप 20% कट करके आप आगे दे रहे हैं. देयर इज़ अ बिजनेसमैन इन गुजरात, वो 20% की जगह 7% पे देता है, और वो बोलता है कि आप मुझे दो. वैसे होता है कि अगर एक फाइज़र की मेडिसिन है तो फाइज़र का एजेंट ही वापस लेके जाएगा. सो देयर इज दिस पर्सन, व्हाट ही डज इज, किसी भी कंपनी का आप मुझे दे दो, पर 7% में इट्स अ विन विन, राइट? मुझे जहाँ 80 रुपये मिल रहे थे, अगर मुझे 93 मिल रहे हैं तो मैं उसी को दूंगी. आप मार्जिन देख रहे हो? और यहाँ पे आप 7 रुपये मत देखो, आप यहाँ पे देखो कि कितने लोग ऐसे हैं. सो दिस बिजनेस इज इन क्रोर्स. इट्स लाइक अ स्क्रैप डीलर बट ऑफ मेडिसिन. So when I'll give you examples, you have to understand that something should hit your brain, right? कुछ जलना चाहिए दिमाग में. 6 महीने हमारे पास, जॉब करोगे, बिजनेस करोगे. Start taking the cue from the examples that I'll give you. And I will ensure that by the end of this course, you will have ample examples, right? Girls, imitation jewelry का example आपने सुना? दो लोग मिलके शुरू कर दो. Why not? What's your name? What's your name? खरीदेंगे सान्या शिवानी से imitation jewelry, SS, Enterprise. Why not? हवा में थोड़ी कंपनीज बनती हैं, ऐसे ही बनती हैं. स्नैपडील हो या कोई भी कंपनी हो, कैसे बनी थी? In somebody's house, they thought and they started making an organization, right? छोटी छोटी. तो ऐसे ही होता है, आप में से कोई कुछ करेगा आगे. Then what is important is कि ठीक है, the strategy and all is very good, but what about evaluating it? See, it should be in a very structured form. कि ठीक है, एक strategy है, उसको आप evaluate करना बहुत important है. It should not be कि while implementing it आप कहीं रास्ते में खो गए, कि ठीक है अभी हमने कंट्रोल नहीं रखा है और कहाँ चले गए, लुकिंग लंडन, टॉकिंग टोक्यो हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी होगी. सो one has to ensure that whatever plan that you've made, it should be implemented, it should be evaluated. In the due course, we'll also understand that how these things can be evaluated. And we all understand that adaptation and continuous improvement. You can't be rigid. Like Nokia was rigid, we know where they are now. They were like कि ठीक है आ रहा होगा, टच आ रहा होगा, आने दो टच फ़ोन, हम तो कीपैड वाला ही फ़ोन ही मैन्युफैक्चर करेंगे. They did not adapt to the changes, right? Now the new thing is the EV cars, right? Now the automotive industry is pro enough. They are willing to adapt to EVs, because अगर वो भी नहीं करते हैं, and what if one day there are no fuel stations, everyone has adapted to the EVs, then there would be a problem, right? So continuous improvement, continuous adaptation is important.
फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग कुछ काम करते हैं, कहते कि चैट जीपीटी है, ठीक है, बहुत लोगों, हैव यू गाइस यूज्ड चैट जीपीटी? ऑल ऑफ यू? चलो थैंक गॉड, असाइनमेंट्स तो बन रहे होंगे अच्छे। सी, I'll tell you what, to use chat GPT also, you need to understand what prompts are to be given, right? You have to ensure कि अगर वो एक तरह से आपका orders लेता है, you have to know as a master what orders are supposed to be given, right? Because यार कोई भी tool होगा, it is like Google, right? Initially जब Google आया था तो लोगों समझ नहीं आता करना क्या है। अब it is like Google, आप उधर डालते हैं information whatever you want कि make a strategic management course, make a case study on this, ये वो आपको सब करके देता है। But for that you have to have a knowledge base कि करवाना क्या है काम। Exactly, which is very important, right? Netflix ने क्या किया था, कोई बताएगा मुझे? Netflix किस बिजनेस में था पहले? DVD rentals में था। Then what they did? They found कि हाँ, they started कि now this is the time that we need to have our online streaming. Now we know कि बहुत सारे Netflix के shows आते हैं, these are produced by Netflix. कुछ ऐसे movies होती हैं कि ये movie किसी ने बनाई है, उनको sell कर दिया, right? But there are various shows जो Netflix ने ही produce करे हैं. What they've done, they have created these shows, they've put on their OTT, and now अब तो उन्होंने ये भी कर दिया, अब शेयर नहीं कर पाते ना पासवर्ड, पता ही होगा, तो पता चल गया इंडियंस हैं, कुछ भी हो जाए। तो फॉर इंस्टेंस लाइक माई ब्रदर, ही वुड बी कि मैं नहीं खरीदूँगा, मुझे कोई ला के दे दो, पर मैं अपनी जेब से खर्च करके सब्सक्रिप्शन नहीं लूँगा। सो आई विल लाइक ऑल राइट, आई डू इट फॉर यू, पर आप यूज़ करोगे, लाइक मेरी पॉलिसी है, आई विल नॉट बाय अ सब्सक्रिप्शन, राइट? So we all know that what Netflix did, they analyzed the market, they understood that, you know, this is not going somewhere, this is now not how we are making our revenues. And if we want to enhance our revenues, we have to do something different. We have to go for something on the lines of, you know, getting the content licenses, developing a robust strategies, streamlining platforms, so on and so forth. आप लोगों को पता है, there is one more streamlining. Yeah. Can you see? Before implementation, can we evaluate, or after implementation? See, it's both ways. While you are making a strategy also, you are continuously, evaluating. However, see, nobody is a god, right? हम implement करते हैं strategy, not necessarily वो एकदम bullseye होगी, right? So we need to, correct, it has to be. See, जो भी हम strategy पढ़ रहे हैं, it can't be in silos, right? It has to be everything you have to consider. आपका vision क्या है, आपका mission क्या है, जो भी आप एक company के लिए कर रहे हैं, you doing it for the profits, right? For example, हमारी एक organization है, आप लोग सब employees हैं, मैं भी एक employee हूँ, मान लीजिए सर हमारे CEO हैं, ठीक है, इनको क्यों स्ट्रैटेजाइज करना है, इनको क्यों अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, बिकॉज ऑल ऑफ आवर सैलरीज आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन वुड मेक, राइट? डू यू नो अबाउट Hulu? Hulu, sorry, it is, we don't have it in India. Hulu इंडिया में नहीं है. It is in US. It is one of the streaming platforms which is not in India. It is in US. US में Netflix से भी पहले, अभी नहीं, Netflix से पहले Hulu बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे. All these shows were there on Hulu. तो ये मैंने US के ऑडियंस के स्ट्रीमिंग मिनट्स निकाले हैं कि Netflix 22.4% ऑफ दी सेट करते हैं. Now ये द होमवर्क फॉर यू गाइज इज कि आप लोगों को इंडिया का निकालना है कि इंडिया में कौन कितना OTT को कितने परसेंटेज लोग ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को मिनट्स अपने ज़्यादा देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम Q2 2023 का देखें तो डिज्नी हॉटस्टार है जो सबसे ज़्यादा देखा गया. इज देयर एनी रीज़न डिज्नी हॉटस्टार? गुड. सो दिस इज व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है,
23% है तो क्यों है? ऐसे तो नहीं अभी हम लोग बच्चे तो है नहीं कि डेटा रट लिया 23% हुलू है, डिज्नी, ये नेटफ्लिक्स. नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड इट. एज अ जेंटलमैन वेरी राइटली सेड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द IPL. तो तभी जब भी IPL और इनके राइट्स जब सेल आउट होते हैं कि कौन सी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, सो दीज ट्रांजैक्शंस आर इन $billion बिकॉज दे अंडरस्टैंड IPL के व्यूअर्स इतने ज़्यादा हैं, उस पर जितना ज़्यादा ऐड देंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें करेंगे, उतना ज़्यादा रेवेन्यू उनका जनरेट होगा, राइट? सो हियर आई हैव ऑल्सो शोन अ ब्रीफ अबाउट कि नेटफ्लिक्स के एनुअल रेवेन्यू ओवर द ईयर्स कितने इन्हांस हुए, एंड हियर इज़ ऑल्सो अ स्लाइट थिंग अबाउट डिज्नी प्लस एंड नेटफ्लिक्स का कैसे ओवर द ईयर्स सब्सक्राइबर्स इसके इन्हांस हुए हैं. Amazon का क्या काम है मेन? What is Amazon into? रिटेल, हम यही पता है. What? ठीक है, प्राइम है, सबने कुछ ना कुछ तो Amazon से कभी ना कभी तो they have bought, right? But what is the one thing in which from which they get the maximum revenue? सर लॉजिस्टिक्स तो पार्ट ऑफ ई-कॉमर्स हो गया कि वो, लेकिन ये क्या करते हैं, ये आपको स्पेस देते हैं, क्लाउड स्पेस. फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू ओपन माय वेबसाइट, सो मैंने आई डू हैव अ वेबसाइट, आई हैव बॉट द डोमेन फ्रॉम होस्टिंगर से मैंने डोमेन लिया है और वहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है. तो ऐसे ही अमेज़ॉन भी आपको, GoDaddy भी एक है, होस्टिंगर है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे यू कैन हैव योर वेबसाइट्स पब्लिश्ड. आप इसको वर्डप्रेस पे बना के एंड यू कैन पुट इट आउट देयर. सिमिलरली फॉर एग्जांपल आप अपना एक कोई ऐप, कोई आप कंपनी खोलते हैं, उसका कोई ऐप है, उसका डेटा कहाँ स्टोर होगा? सो यू बाय दीज स्पेसेस. तो अमेज़ॉन का जो मेन काम है, फ्रॉम वेयर दे गेट द मैक्सिमम रेवेन्यू, इट इज़ फ्रॉम द सर्वर्स, मोबाइल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, remote computing, so on and so forth, right? So this is what I was talking, that Amazon के profits maximum कहाँ से आते हैं? They get it from their these AWS services, right? ठीक है, अभी हमने strategy formulate कर लिया, implement कर लिया, but what is one thing that would really help for our strategy to be implemented? For example, हम लोगों को एक conference कंडक्ट करवानी है कि DU में SOL के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक कॉन्फ्रेंस को मैनेज करेंगे, उसका सब कुछ वो करेंगे, एवरीथिंग, लॉजिस्टिक्स, जो गेस्ट आ रहे हैं वो कहाँ रुकेंगे, वो कहाँ कैसे ट्रैवल करेंगे. हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन ए कॉन्फ्रेंस? हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड एज ए, नॉट एज अ पार्टिसिपेट एज ए ऑडियंस, बट बैक हैंड पे कभी किसी ने काम करा है किसी कॉन्फ्रेंस में? ठीक है, चलो आई विल इंश्योर कि आप लोग बिफोर यू लीव SOL एक कॉन्फ्रेंस में आप लोग पार्टिसिपेट करो. देन यू विल अंडरस्टैंड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग दैट गोज़ बिहाइंड इट, कि कहाँ से रजिस्ट्रेशंस होंगे, कौन गेस्ट आएंगे, वो कहाँ रुकेंगे, ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो फॉर दैट टू हैपन, हमारी ये जो क्लासरूम है इसमें एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट? ऐसे नहीं कि किसी को पता ही नहीं कहाँ पे कौन क्या काम कर रहा है. मान लीजिए कि मैं बोलती कि ये 5 काम हैं, हमने टीम्स ही नहीं बनाए कि लॉजिस्टिक्स कौन देखेगा, एयरपोर्ट पिकअप्स किसके हैं, टैग्स बनते हैं, दोज टैग्स दैट लैंडयार्ड्स दैट वी वेयर, वो कौन बनाएगा, प्रेजेंटेशंस कैसे रन होगी, उनके जो फूड एंड बेवरेजेस हैं वो कौन देखेगा, उनके लंचेस क्या होंगे, कहाँ रुकेंगे, कौन सी सस्ती प्रॉपर्टी हमें मिल सकती है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. सिमिलरली इन अ बिजनेस सेटअप एज वेल, one has to ensure that the organizational structure should be such that whatever strategy that you are planning to implement, वो अच्छे से implement हो पाए, right? So what are the key considerations while having the while designing a strategy? Alignment with the strategy, आपकी जो organization का structure होना चाहिए, it should be aligned with the strategy. Scalability and flexibility, integration and differentiation, communication and decision making. Alignment with strategy, it means, for example, अगर हमारी कोई एक tech company है, so we have to ensure कि there is an atmosphere, there is an environment of innovation. If, for example, my employees want certain software or certain knowledge base,
कि ये वाला पर्टिकुलर काम करने के लिए कोई यूएस बेस्ड क्लाइंट है, फॉर टू सर्व देम आई नीड टू लर्न दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. सो एज एन ओनर or as a team member, I have to ensure that my colleagues or my subordinates get that particular resource, right? Because अगर मुझे एक strategy को implement कराना है तो structures के साथ align होने चाहिए. Similarly, scalability and flexibility. If we want to scale a business, abhi there is a team of 10 people. If I have to scale it, if I have to enhance the team, if I have to get more people on board, I have to ensure कि मेरे पास एक तो जगह होनी चाहिए, right? उनको बिठाने के लिए, that is very important. Logistically, I need that place. I need to have that capital, उनको salary देने के लिए. I need to have certain business so that that everything is smooth and running, right? Then integration and differentiation. ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि हमारे कोई units है, for example, this is a team, this is a team, this is a team. They are working in silos, those teams are working, but ultimately एक काम पे आके, for example conference example that I had given, I have a team जो logistics देख रही है, एक team है जो tech संभाल रही है, एक team है जो हमारा stage management कर रही है. They are working in silos. However, what is the bigger goal? The bigger goal is to have a successful conference to be conducted, right? Communication and decision making, as I had already mentioned, it is very important. It is a key because अगर आपकी communication clear नहीं है, in general also, in life also, right? The communication has to be extremely clear because it would eventually help you in delivering better. For example, he's my team member and I tell him कि वो कौन सा cricketer है, रोहित शर्मा है ना, जो कहता है ऐसे नहीं ऐसे कर देना, वो नहीं ये कर देना, ये clarity तो देना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं क्या कर देना, ये नहीं वो कर देना, right? So you have to communicate. ये ना ऐसा ना वो है. I know he talks like this, right? But क्या? Communication has to be extremely clear. This is the task. You have to make a presentation. You have to make a deck of 50 slides with these key points. There has to be a flow. Because if, for instance, my team member उसने पूरा रात जाके एक 50 डेक का स्लाइड वो पूरा बना दिया, 50 स्लाइड्स का डेक बना दिया, एंड मॉर्निंग में व्हेन आई लुक एट इट आई एम लाइक व्हाट रबिश, राइट? क्वाइट पॉसिबल इट इज़ माय प्रॉब्लम ना, मैंने क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दिया. एक एम्प्लॉय ने पूरा अपना रात स्पेंड करके प्रेजेंटेशन बनाया एंड नेक्स्ट डे आई एम टेलिंग व्हाट रबिश इज दिस. द प्रॉब्लम लाइज विद मी. देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. This is how you will deal with it, because in future you will find such people in organizations also. They will give you some task. They will not tell you what the roadmap is. They will just tell you ये काम है. ठीक है, वो stage भी आता है, ऐसा नहीं है वो stage नहीं आता है, but it comes over a period of time, right? When the communication is clear, the understanding is developed, this person has understood that what are the deliverables, so on and so forth. What is Airbnb into? क्या करते हैं इसमें? Has anyone ever used their service? हाँ, has anyone ever used Airbnb? You've used. Where did you go? वहाँ पे you've used Airbnb? Okay. So Airbnb, it's like if you have a property, you can put it out rather than giving it for months. जो हम monthly वो करते हैं, उससे बेटर है कि हम किसी को for a day or two. It's like a hotel, but at somebody's place. So उसमें क्या होता है, even if I'm staying, मैं एक room किसी को दे दिया कि भाई आप रहे, I'll provide them with breakfast also, a meal also. And why people generally opt for this is, it is important when you really want to know about the culture. For example, if you're traveling abroad, right? अगर आप एक होटल में जाके रुक के आ जाएंगे तो probably you will not get to learn about the culture of that particular place. But if you stay with a family, you'll get to know more about them, right? Especially this happens, when people travel to Vietnam and all these countries, they go there for months and they stay at somebody's place. And आपको obviously it is like, right, localized culture. The cost is also very less. And however, if you're not traveling with family, because when you're with the family, then you want the security, safety and everything, However, when you're traveling with friends, people do opt for Airbnbs and
I'm sorry? This Airbnb is not for security and other purposes. Security. They came for low cost, unutilized resources need to be used in a better manner. Right. That's their strategy. Yes, correct, correct. And they are expanding all over. Yeah, right. So even when you're opting for it, People who are staying in Airbnb apartment, they are not seeing a localized culture as well. They are bounded to their environment only. Right? They cannot access other parts. Even they are staying in a hotel as well. So आपको you go and you can explore your culture in a different part. But Airbnb is not giving us these kinds of. I beg to differ, but we'll take it up after the class. All right? So what they do is, when we're talking about Airbnb with respect to the organization perspective, they have their employees who are constantly looking out for the data. It is required, I don't know how many of you know about booking.com, right? So, when you book from a booking.com, it is like they are after your life to give a review. If you have, अगर जब तक आप रिव्यू नहीं देते हो वो आपको मैसेजेस करते रहेंगे, दे विल कीप सेंडिंग यू मैसेजेस, मेल करेंगे, मैसेज करेंगे कि प्लीज़ रिव्यू दो, बिकॉज दिस इज़ देयर असेट. फॉर एग्जाम्पल एज यू राइटली सेड, एयरबीएनबी में सिक्योरिटी, सेफ्टी, वो सब चीज़ें होती हैं, बट व्हाट इफ़ आई हैव एन एयरबीएनबी थिंग एट माई प्लेस, कोई आके वहाँ पे रुकता है, दे राइट अ रिव्यू. आप लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम किसी का भी एयरबीएनबी पे सर्च करेंगे, यू फाइंड हाउ मेनी पीपल हैव स्टेड देयर, व्हाट इज़ द रिव्यू, हाउ वर द होस्ट. सो दिस इज़ द वे that this is a verified thing, right? Because it is a matter of security. So this is how it is their asset. So similarly in Airbnb also, जो employee base होता है, to further formulate their strategy, what they do is they analyze that what is the review, what is the rating, and accordingly they try to enhance their services, especially with respect to the security of the customers. Spotify we know. Spotify में इनके organization में what they are doing is they are having squads, tribes. What they do is there are certain group of people जो जैसे एक pattern को study करते हैं. For example कि अगर हम इंडिया बेस पे देखें कि कौन से लोग हैं जो आजकल एक मतलब the patriotic songs ज़्यादा सुन रहे हैं. Especially it happens between 15th August, 26th Jan के around, the patriotic songs are heard more. So what they are doing back end is कि अच्छा जब लोग ये गाना सुन रहे हैं, एक ad दे दो. So this is what this the data analysis is all about. क्या कर रहे हैं data का, क्यों analysis कर रहे हैं, right? So this is what they do. They analyze the data. There are teams जो cluster करके काम करते हैं आपस में, so that they can have a. See अगर आपका भी business होगा, if you will not have insights about it, how will you grow better, right? How will you get to know that your business is lacking in this particular domain? Then processes and management systems in strategic management. What do we understand by this? Can someone throw some light on it? What are processes? What are processes? See, processes are something that you need to have a certain plan out. For example, अगर हम classroom की बात करें, so the process here is that one teacher would go, the other teacher would come, the students will be there, this will be the setup. You will be intimated about the classes a day before. These are the processes that SOL has to inform the students. What if there are no processes? What if you guys don't know what class is there? What if you have some other plans, and what if one कि अच्छा अभी बोले Sunday को there is no class, and they just send a message, there is a class and it's an important class and you guys have to attend. In this case, certain processes are important, right? घर में भी हमारे processes होते हैं, सुबह ये होगा, शाम को ये होगा, otherwise everything would go haywire. Why it is important? Planning, आपके resources को deploy करना. संडे को भी यहाँ पे if you'll see there is all security here SOL में. अगर यहाँ पे क्लास नहीं होती तो security नहीं होती. If we have to have a class on a Sunday, the people are paid more for their services, right? Because they have been called, the security is called even on a Sunday. अगर processes नहीं होंगी, आप उनको बुला लेंगे, they'll not be paid, right, for their services.
देन व्हाट आर द क्रिटिकल मैनेजमेंट सिस्टम्स? ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, आपके HR और फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स होते हैं. व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, आपको हर चीज़ को ट्रैक करना इम्पॉर्टेंट है, राइट? स्टारबक्स का क्या है ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स व्हेन व्हाट इज स्ट्रैटेजिक नीड? टू enhance their brand image and customer loyalty through superior customer experience and sustainability efforts. Do you know Starbucks is as good as a bank? Right? How? it has its app जिसमें लोग already pay करते हैं and उसके through it works like Paytm in America. The question is, do you understand that Starbucks is like a bank? It works like a bank. Not like a real bank with no liability. It's a bank with no liability. Banks पे liability क्या होती है? For instance, if I have a... have to pay back the money. Right. It For doesn't ins- have to pay back. correct. For instance, if I have around 30 lakhs in the bank and I want कि मुझे कल ही 30 lakhs अपने पूरे निकालने हैं, I can go and I can take it out. But Starbucks is like a bank which has no liability. I can't ask them for my money back. If you'll go to a Starbucks, you know, इनकी वेरिएंट्स होते हैं टॉल, वेंटी, ग्रांडे, ये से वहीं सुनाई देते हैं. बाहर तो मैंने कभी सुना ही नहीं कि ये टॉल इज द स्मॉल वन, है ना? So what they do is they expect you to have that card. With every 300 rupees purchase of a coffee, you get a star, right? You get a star. अगर आप किसी को रेफरल देते हैं, you get a star. On every 10 stars, you get one coffee free. और अगर आप उसमें 2000 रुपीज़ का टॉपअप करते हैं, विद एवरी 2000 रुपी टॉपअप यू गेट 5 stars. अगर आप स्टारबक्स के आउटलेट को तब विजिट करते हैं जब वहाँ का जो फुटफॉल है बहुत कम है, जैसे दोपहर में मान लो अगर आप वहाँ जा रहे हो जब बहुत कम भीड़ है, या कोई ऐसा स्टारबक्स का आउटलेट है जहाँ पे जनरली लोग कम आते हैं, वैसे दे वेरी स्ट्रेटेजिक, दे डोंट मेक सच आउटलेट्स. हाउएवर इफ देयर इज एनीथिंग लाइक दिस, you get 25 stars at that time. What they do is they want you to come repeatedly. अगर आप every day वहाँ पे जाते हैं consecutively, for example, if I have my workplace somewhere in Cyber City and डेली मैं वहाँ पे कॉफ़ी पीने जाती हूँ, तो जो भी customers consecutively आते हैं उनके लिए और 25 stars होते हैं. So what they do, they have your money with them. आप उसे टॉपअप करते हैं, उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, what they can do, उनकी लाइबिलिटी तो है नहीं कि उन्हें हमको वापस करने हैं, और वी कैन टेक लाइक फॉर एग्जांपल पेटीएम में इफ़ वी पुट सम कैश, जैसे 2000 रुपीज़ का फ़ोनपे में ऑटो डिडक्ट हो जाता है एवरी टाइम यू स्पेंड 2000, वो अपने आप, इफ़ यू हैव इनेबल दैट थिंग, 2000 रुपीज़ उसमें आपके बैंक से अपने आप आ जाते हैं. बट यू कैन टेक इट आउट, यू कैन स्पेंड इट समवेयर, राइट? हाउएवर इन स्टारबक्स यू कांट डू दिस. बट वॉट दे डू इज़ दे यूज़ दैट मनी दैट यू हैव डिपॉजिटेड, और वो उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, right? They can invest in some infrastructure because that money is huge. See, when we talk about, especially when you guys are into, you know, when you guys are into business administration, now you have to start thinking in billions. अभी आपको कस्टमर सेंट्रिक होकर नहीं सोचना है कि मैं तो गया 300 रुपये की कॉफ़ी पी के मैं तो आ गया. नहीं, you now you have to build your acumen. You have to start thinking on the lines of, what if I am the owner of Starbucks, right? Now, what if I have a business like this? What will be my, you know, revenue? I think I have discussed this now, how a restaurant business works. I think we have this discussion once, right? So now you guys have to, you know, this is, yeah. ये स्टारबक्स में जब हम स्टार लेते हैं, स्टारबक्स की भी वो लेबिलिटी है कि हमें कभी ना कभी उसको पे करना ही है. Yeah, Starbucks. In terms of coffee, but they want to pay us, right? हाँ, पियो कॉफ़ी. हाँ, but हाँ, उनका ये है कि आपने पॉइंट लिया 10 स्टार का, एक कॉफ़ी आपको मिलता है. उनको कितने की पड़ती है कॉफ़ी? इन्वेस्ट किया उसके हाँ उसके बदले मुझे जो मिलता है, हाँ, that's called award. राइट 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 राइट. वो हमें मिल रहा है. हाँ. लाइबिलिटी तो उनकी है कि हमेशा बनी हुई है कि मैंने 200 या 300 नहीं, देखिए आई टेल यू व्हाट, नहीं यू राइट व्हाट यू सेइंग, बट आप ये सोचो, आप इतने पैसे उनको दे रहे हो, आपको लगता है वो स्टारबक्स की 300 रुपये की कॉफ़ी 300 रुपये की पड़ती है उन्हें? आप ये सोचो, आपको 10 स्टार पे, no, we can say anything about anybody's business. No, we have to do this. This is what we are doing, right? This is what we are analyzing. This is what we are doing. 10 stars, one coffee,
10 स्टार्स कितने रुपए में आएंगे आपके? 3,000 रुपये में आपके, आपको उन्होंने बोल दिया। वो आपके, दे वांट योर कस्टमर लॉयल्टी, दे वांट अ रिपीट कस्टमर, राइट? कोई बात, अच्छा यार एक बात बताओ आप, लाइबिलिटी एक 3 रुपए की कॉफ़ी जिसके आप 3,000 रुपये पे करने के बाद 3 रुपये छोड़ दो 10 रुपये की। हाँ, आप एक स्टारबक्स में कॉफ़ी पीते हो और घर पे मान लो कॉफ़ी आप बना रहे हो, यू ऐड अ कॉफ़ी, आप स्टारबक्स से ही लेके आ जाओ कॉफ़ी। कितने की कॉफ़ी होती है? दूध कितने का होता है? कितने का होता है वो? आप इतना ज़्यादा स्पेंड करके, दिस इज, एंड वन मोर थिंग इज देयर इज वन मोर एंगल, यू नो, कितनी बार होता है क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू यूज़ अ क्रेडिट कार्ड, और सम शॉपर स्टॉप पे शॉपिंग करते हैं, वो आपको पॉइंट्स देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि आप ये नेक्स्ट विजिट पे रिडीम कर लेना। जैसे हमने शॉपिंग किया, वाइल वी आर चेकिंग आउट, बिल पे करके वो आपको 2 एक से कूपन दे देते हैं, तो मेरे जैसे चालाक कस्टमर्स बोलते हैं कि मैं अभी रिडीम कर लूँ, आप अभी मेरे को ये मैंने जो ख़रीदा है इस पर 500 रुपये का डिस्काउंट दे दो। वो लोग ये बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप जब विज़िट करेंगे उस टाइम पर यू विल बी एबल टू रिडीम। बट कितने लोग उसको संभाल के रखते हैं? सिमिलरली इन स्टारबक्स ऑल्सो 10% ऑफ जो वो लोगों के पास, हमारे ही जो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, लोग रिडीम ही नहीं करते। कितने करते हैं? नहीं करते। हाँ एग्जैक्टली, पैंटलून में चलता है अभी भी। हाँ, सो देयर मैनी, ये वो एक वो अपने जो हम लोग ब्राउन बैग होता है उसी में वो लोग एक कूपन डाल देते हैं नेक्स्ट विजिट पे, और वो हमें कूपन कम मिलता है 5,000 की शॉपिंग पे। जनरली 5,000 की और एनी सच हायर अमाउंट की शॉपिंग कब करते हो? आप दिवाली टाइम पे करते हो। ऐसे हर दूसरे दिन तो जाके वी डोंट स्पेंड सो मच इन पैंटलून्स, राइट? दे गिव यू अ कूपन, दे एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू विल कम एंड यू कैन रिडीम इट। वो हम घर ले जाते हैं, उसको मैट्रेस के नीचे रख देते हैं, फिर मैट्रेस के नीचे वो और आगे खिसक जाता है, फिर भूल जाते हैं। ये होता है, दिस हैपेंस, राइट? वी डोंट रियली रिडीम। कितनी बार होता है कि आप फ़ोन पे भी या कुछ पेमेंट करते हैं तो वो आपको एक कूपन देते रहते हैं। किसने ध्यान दिया है उन कूपन्स पे कभी? नोबडी रियली, यू नो, पेज अटेंशन टू दीज थिंग्स। सो जब मैंने आपसे स्टारबक्स को डिस्कस करा है तो आप क्या करोगे? यू विल फर्दर, यू नो, एनालाइज दिस कि ऐसा क्या, ऐसे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस MBA चाय वाला एंड चाय बार, वो कौन सा है वो, सुट्टा चाय बार एंड ऑल दिस, यू नो। हाँ, बीटेक, कोई पानी पूरी, कुछ, यू नो, यू माइट अभी जब हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं ना, दे लुक वेरी फनी कि क्या है, तो ये दैट इज, देखो यार, डिग्री की वैल्यू यहाँ से कितने लोग जाके क्या क्या करेंगे? He has made a multi-million-dollar business out of it. Then कैसे agree? अभी आप देखोगे कि लोग, हाँ ठीक है, कोई बिजनेस कर रहा है उस पर हंस रहे हैं। एक जो अभी आप देखो, इवन इफ यू नो आर नॉर्मल, इवन इफ यू नो, इफ यू गो टू अ मार्केट, इफ वी गो देयर एज अ कस्टमर, हम मोमोज खरीदते हैं, कितने का होते हैं? कितना उनका रेवेन्यू होता है, राइट? हमें तो लगता है हम लोग जब जा रहे हैं, वी आर जस्ट बाइंग 120 का हमने खरीद लिया एंड वी आर कमिंग, बट जस्ट लुक एट द, यू नो, मल्टीफोल्ड पीपल हु आर गोइंग एंड बाइंग। आपको कॉस्ट देखो कितना लगता है और उसका कितना जनरेट हो रहा है, हाउ मच प्रॉफिट्स दैट पर्सन इज मेकिंग। सो these examples are only and only so that you start thinking on those lines. Even the brands that you people are wearing, the pen that you are using, हमें तो एक पेन दिख रहा है ना, एक पेन 10 रुपये का हो गया, उसको कितने का पड़ा होगा? शायद 2-3 रुपये का पड़ा होगा। और उसने ऐसे कितने बनाए होंगे? करोड़ों में। अब अगर आप 10 रुपये का पेन है, चलो लाखों में मान लेते हैं, मान लो 10 रुपये का पेन है, लाखों बना दिए, बेच दिए, हर पेन 3 रुपये का उसको पड़ा है, उसका कितना प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं अभी एक क्रूड एग्जांपल दे रही हूँ, वील ऑल्सो कंसिडर लॉजिस्टिक्स एंड रिटेल और से। अभी आप, हाँ कितना? 7 रुपये। हाँ, तो जब हम एक एंटिटी देखते हैं तो ये लगता है कि 7 रुपये, लेकिन जब आप इसको लाखों में देखते हो तो when you will start thinking, when you will have your own startup,
यू हैव टू ऑल्सो थिंक ऑन द लाइन्स ऑफ द वॉल्यूम्स कि इतना बिकने पे कितना कितना होगा, राइट? हाँ एग्जैक्टली, कॉस्ट भी घटती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसी को बोलते हैं, राइट? आइकिया वी नो, आइकिया, ठीक है, अभी इनका एक मुंबई स्टोर बंद हो गया विच इज़ ओपनिंग इन पुणे नाउ इवेंचुअली. आइकिया इज़ इनटू, हमें यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती आइकिया की क्योंकि वी पीपल आर वेरी प्रिविलेज्ड. हमें खुद नहीं ये डेस्क बनाने पड़े, किसी ने हमारे लिए बना के रख दिए. घर पे भी द यू नो सिंस हमें लेबर्स मिल जाते हैं, आराम से हम लोग अपना सामान किसी भी फ्लोर पे रखवा लेते हैं. हाउएवर व्हेन यूएस में ऑल दीज आर रियली एक्सपेंसिव एंड दे हैव दिस DIY थिंग्स. अगर ये टेबल भी बनाना है इसका एक मैनुअल आएगा, आइकिया से एक डब्बे में ही आएगी. आई थिंक आई हैव गिवन दिस एग्जांपल, आई रीशेयर इट विद यू. एक अगर ये टेबल एक ट्रक में आएगी कितनी आ जाएगी, मान लो एक है ना, मतलब देखते डिपेंड्स ऑन द ट्रक, राइट? मान लीजिए 10 आती है, बट अगर ये पूरा टूट के बॉक्स में पैक होके आएगी तो कितने आ जाएंगे, राइट? उसके साथ एक ऐसा स्लिप डाल दिया DIY, उसके साथ एक पाउच दे दिया जिसमें स्क्रूज दे दिए और एक पतली सी एक चीज़ दे दी और उसे आप कर लो. दे आर सेविंग लॉट ऑन लॉजिस्टिक्स एंड आप घर पे जो आपके कस्टमर्स हैं वो उसको अपने आप असेंबल कर सकते हैं. यहाँ पर क्या होता है, हम एक सोफ़ा मंगाते हैं मान लो, तो पूरा ट्रक में एक सोफ़ा ही आ रहा है. लॉजिस्टिक्स, वो ट्रक जा रहा है, एक सोफ़ा ही डिलीवर कर रहा है, उसके साथ वो लेबर भेज रहा है. फिर देन वी आर हैविंग अ आर्ग्यूमेंट विद द लेबर ऑल्सो, इतने नहीं देंगे, इतने नहीं, कई हम लोग खुद ही बचा लेते हैं पैसे कि हम ही चढ़ा देंगे ऊपर, मत करो. यू नो वी डू ऑल दिस, राइट? वी आर जो इंडियन कंज्यूमर्स आर, अभी रिसेंटली उबर के CEO ने भी बोला है ना कि इंडियन कस्टमर को कम प्राइस में बहुत कुछ चाहिए, दे आर वेरी डिमांडिंग, राइट? हाँ, सो वी आर प्राइस सेंसिटिव. जहाँ पर भी वी आर एबल टू सेव, वी विल सेव, राइट? Now we'll discuss the culture. अच्छा, how many of you know Dipinder Goyal? You know this? उसके बारे में और क्या पता है? हाँ वो तो ठीक है, that's a given. So if you'll ever watch any of his interviews, he will talk about the organization's culture. Why is the culture important? He has written one book on culture. Is anyone interested in reading that book? He has written a book on culture. Who is interested in reading a book? Anyone? You're interested? I'll buy a book. I'll give it to you. आप पढ़ के किसी और को चाहिए तो उनको देंगे, नहीं तो मुझे ब्रीफ करेंगे उसमें क्या लिखा है, ठीक है? We'll discuss. It's on culture. Culture. गूगल करो दीपिंदर गोयल की जो बुक है. वाई इज दिस, सॉरी, दीपिंदर गोयल. सो वाई इज कल्चर इम्पॉर्टेंट? इन दिस क्लास ऑल्सो इफ आई विल नॉट सेट द ग्राउंड स्ट्रेट कि बात नहीं करनी है, मुझसे बात करनी है, आपस में नहीं करनी है, क्या होगा? दिस विल बी अ ह्यूज chaos in the class. Will I be able to deliver? No. What will I do? I will leave. आप लोगों का संडे वेस्ट, आप लोग जो दूर से आ रहे हैं, संडे वेस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल इन द क्लास, राइट? वाई इज द कल्चर इम्पॉर्टेंट? सो दैट द रूल इज सेट. घर का भी एक कल्चर होता है, गांव का भी एक कल्चर होता है, हर जगह का एक कल्चर होता है. वाई? बिकॉज इफ वी वॉन्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट वी हैव टू हैव दिस कल्चर सो दैट Similarly, in an organization also, अगर एक टेक कंपनी है, so we need to have the culture in which उनको can I have one more Vicks just in case someone has? Yeah, Vicks है. Oh, thank you so much. दो ही ले लूँ? Thank you. So culture क्या होता है यार? These are values and belief systems that we have, right? Culture important होता है so that there is an unseen knitting
where people have common goals and common beliefs, so that जो भी हम goals achieve करना चाहते हैं, everyone is at tandem with each other. Tech company है, हम चाहते हैं जैसे Google है, have you ever googled Google का office? Do this thing. अभी आप जब जाएंगे तो YouTube पर Google का office आप Google करना, you'll find this. YouTube करना, you'll find this, that there is no, it's like a very, you'll find कि pooling table है, they have their kitchen, the dining area has all the cuisines, not just in India, even the US office है उनका उधर भी, because they know there's a lot of Indians there, they'll have idli, dosa, sambar, they'll have parathas, they'll have everything. वहाँ पे जो comfort है that they give to their employees is the most important thing. Why? Because they want कि उनका maximum productivity उनमें से आ सके, right? अगर उनको हम ऐसे culture दे रहे हैं which is pro them कि we are there to take care of you. In return, we want you to focus entirely on developing new technologies, coming up with new ideas, so on and so forth, right? Culture shapes strategy execution, as I already mentioned. अगर culture है, अगर इस class का culture है पढ़ने का, अगर इस क्लास का कल्चर 6 months में ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे जाने के बाद कम से कम 10 बच्चे अपना एक स्टार्टअप खोल लेते हैं और आज से और 10 साल बाद it's $1 million company, which is very doable, huh? It is extremely doable because we have seen people who have done it, right? How many of you know about Zerodha? कहाँ से पढ़ाई करी है उसने? कौन से IIT से पढ़ाई करी है उसने? He has not. I think he's not even 12th. So what I'm trying to make a point here is कि generally this is associated, when people have startups, be it a Zomato or be it Bharat Pay, it is associated that the students who are from IITs and IIMs, they end up, having these startups. However, people like Nikhil Kamath, they have busted the myth. If you're a seeker and if you want to seek knowledge, anything is possible and anything is doable. So coming back to the point that I was trying to make here is, yeah? Is it a myth most founders say that IIM and IITs produce employees, not the business people like business? Yeah, it is a very individualistic thing, right? Knowledge है, घर में भी ऐसे ही होता है. If you have 5 siblings, same education, same household, same everything, but what paths they choose is very different, right? But those who are startup nowadays, those who are considering the best in the current scenario, but they are into the incubation centers first, they implement it. But the incubation center has been supported by this IIM and IIT. Correct. Yeah. It's not correct for every. Not every, but mostly those who are famous that you are seeing, they are into the incubation center first. See, I'll tell you what happens is, when you have a degree like an IIT IIM, so when you go for angel investors, you go for, you hunt for VCs, it is considerably easier. I'm not saying कि एकदम आप जाते हो बोलते हैं हाँ ले लो पैसे. No, it doesn't work like this. If you will read about, yes ma'am. जो IIT का स्टूडेंट है उसका स्टार्टअप से क्या उसको फंडिंग बड़ी इजी मिल जाती है. That's what I'm trying to make a point here. However, it looks कि easily मिल जाती है. अगर आप there's this brand शायद girls को पता होगा. ये भी नोटिस किया गया कि वो स्टार्टअप जो है 70-80% फेल भी होते हैं. Sir, nothing comes with a guarantee, right? Everyone tries, but not everything would see the light of the day. However, if the girls know about this brand Sugar, किसकी है Sugar brand? Vinita Singh की. Do you know anything about her background? What? Which IIT? Right, and then she went to IIM. If you will read about her, you will know that उसको कम से कम 80 to 90 rejections मिले थे. If somebody is investing in your business, and she had multiple failures as well before she started Sugar. उससे पहले उसकी कुछ gifting करके कुछ था that she was giving these boxes कि ये इसमें secret चीज़ें आएंगी, उसमें items आएंगे. However, she went to so many angel investors and VCs, and eventually she got the funding. So when we say it's easier for them, see, यार कोई भी आपको ना, if somebody is giving you capital, ऐसे नहीं देगा. Just for your degrees वो नहीं देगा. Probably
आपको एंट्री मिल जाएगी टू मीट दोज पीपल, राइट? You can have an access to them. However, if you do not have a brand good enough for them to invest, they will not invest. Because nobody wants to invest in a dead horse, right? Who would like to invest in that? So, culture as a strategic asset, as I mentioned, culture है तो उस पे they'll be have a clarity about the vision, mission, so on and so forth. It's an asset. कोई भी नया एम्प्लॉय भी आता है तो उसको भी दे विल गेट यूज टू दी कल्चर. जैसे टाटा का कल्चर जो है, टाटा का कल्चर एवरीबडी नोज अबाउट टाटास कल्चर, राइट? कि इट इज़ अबाउट ट्रस्ट, कि टाटा का प्रोडक्ट है तो अच्छा होगा. इट्स अ गिवन. कैसे वो आया? इवन यू नो पीपल हु आर वर्किंग विद टाटा, इट इज़ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बट whomsoever is working with Tata, they are as free as somebody who is into a government setup, you know. They think like this, it's a government, it's a sarkari company. Once you are part of a company, any company for that matter, which is owned by a Tata group. Similarly, in Google also, culture is of openness, flat structure hai, there's no bossism per se. You can have an innovative idea, you can go, you can pitch, and whatever resources that are required, you will get it. But the condition is it has to be for the betterment of the organization, right? Now, what are the basics of strategic performance management? ठीक है, हमने strategy बना लिया, but उसको measure भी करना है हमें कि हम लोग अभी ये strategy में where have we reached, what is the, you know, how are we able to analyzing, हम optimize कैसे कर सकते हैं अपने resources को, है ना? What are the activities, what will be the outcomes like, right? So, for one of the important thing is goal setting. आपने goal set किया, and ये आप लोग, you know, you can use it in your life as well. Smart. What do we mean by smart? Specific, measurable. A से क्या है? R से? You have to pinpoint that this is my goal. For instance, मुझे अपनी कंपनी का revenue 15% increase करना है. स्पेसिफिक गोल है कि ये हमें करना है, अचीव, मेजरेबल है 15%, अचीवेबल भी होना चाहिए, वो रेलेवेंट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी कि कोई भी आपने एक चीज़ सोच ली है और उसी के आप विदाउट यू नो प्रायर थिंकिंग यू थिंक कि चलो अभी आई विल गो विद इट. देन इवेंचुअली इट शुड बी अ टाइम बाउंड. इट शुड नॉट बी लाइक कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा स्पेसिफिक वो हो गया, मेजरेबल है कि 1 या 2 अटैम्प्ट में I will try to clear this exam. Relevance obviously उसकी है, achievable होना चाहिए, relevance है, time bound भी होना चाहिए ना. ये नहीं कि देखिए होता क्या है ना, then we have to understand some things are not meant for us. We have to know कि it has to be time bound कि अच्छा this is the time that I'll give it to this particular thing. However, if it doesn't work, I'll move it to something else. Similarly, as sir rightly said that you know there are various startups, 60-70% of the startups that have failed, and it's good to accept failure, right? अगर आप उसी पे dead horse पे लगे हुए हो और आप उसको कह रहे हो कि नहीं अभी हम उसको revamp कर देंगे. How many of you watch Shark Tank? उसमें बहुत सारे ऐसे products आते हैं ना कि even जो sharks होते हैं वो बोलते हैं कि अभी इसको drop करो, leave it, कुछ और करो, start thinking about something else. Because अगर आप उसी चीज़ में if you are continuously you know, एक मुझे याद नहीं आ रहा उस प्रोडक्ट का नाम क्या था. There were these 2 ladies who came for the show and they had one device. उससे वो एक एप्पल को फ्रूट को वो चेक करने कि कितना ख़राब हो गया है. तो उसने बोला कि उन्होंने अपना इवैल्यूएशन कुछ करा था 300 करोड़. सो दे वर लाइक कि इसका तो उस टाइम पे आई थिंक अश्नीर वाज देयर एंड ही सेड कि अगर कोई केला है मैं तो उसका गंदा, हम लोग भी ये करते हैं ना, गंदा वाला पार्ट फेंक के बाकी तो खा ही लेते हैं. कहते हैं मुझे ये मशीन थोड़ी मैं लगा के चेक करूँगा कि मेरा ये कितना केला ख़राब हो. कोई एप्पल है, कोई पार्ट ख़राब है, मैं तो नहीं करती कि पूरा फेंक देती हूँ, मैं वो वाला पार्ट को फेंक देती हूँ, मैं बाकी खा लेती हूँ. एंड एज इंडियंस वी आर वेरी गुड इम्यूनिटी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? सो वी डोंट यूज अ डिवाइस, राइट, टू चेक ओके दिस इज लाइक 10% spoil, this is 20% spoil. No, we just throw the half of it and then we eat it, right? हाँ exactly, yeah, we'll come to that also. Good, thank you. Then Ashneer said कि इसको बंद कर दो, आप इसको बंद कर दो
क्योंकि ये चलने वाला है नहीं, सी कोई बायर्स होंगे नहीं. आप 300 करोड़ इवैल्यूएशन लगा रहे हो, इट्स विल बी अ फेलियर. एज सॉरी नहीं, वो सिप लाइन तो चलो वो तो एक बहुत ही मिमिक और मिमिक्री टाइप वो चीज़ थी. इट वाज अ वेरी ह्यूज गिमिक. एज मैम राइटली सेड अबाउट दिस एग्जाम्पल, देयर दिस पीपल हु केम कि हमारी वॉशिंग मशीन है जो बहुत एक ग्लास पानी में कॉफ़ी का स्टेन हटा देगी. वो नहीं हटा पाए थे. स्टीम, उन्हें बोला स्टीम आएगा, ये आएगा, वो आएगा, एंड दे वर नॉट एबल टू डू इट, राइट. देन दे सेड कि आप इसको बंद करो, मत करो ये. So what I'm trying to make a point here is that things have to be time bound. आप हवा में चीज़ें नहीं कर सकते ना, be it anything for that matter, right? Then performance indicators कि आपके key performance indicators होने चाहिए कि for example अगर हमारी एक टीम है तो अगर मैंने बोला है कि आप लोग टाइमिंग 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, मैं कुछ भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर लगा सकती हूँ ना कि जो टाइमिंग पे आ गया उसको 10 पॉइंट्स, जो नहीं आया वो 8. डिलीवरेबल्स कि ये टास्क दिया है, इतने टाइम में करा, उसको इतने पॉइंट्स, नहीं करा ये. वाई आर दिस इम्पॉर्टेंट? यू नो इफ वी हैव, अगर हम लोग ऐसे एज अ एम्प्लॉय सोचते हैं ना चीज़ें, ये बॉस कितना गंदा है, ये हम लेट आ गए तो क्या हो गया, हम थोड़ा 10 मिनट की कॉफ़ी ब्रेक 1 घंटे की हो गई तो क्या हो गया, थोड़ा स्मोक ब्रेक ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया. दिस इज वॉट वी थिंक एज एन एम्प्लॉय. बट अगर यही आपकी कंपनी होगी ना, कैसे सोचोगे? अगर वो 10 मिनट भी गए ना तो बोलेंगे इतनी देर, ऐसे कैसे 10 मिनट लगा लिए, आओ बैठे काम करो. So now we have to, we need to change our perspective. Now we have to start thinking like boss, you know. We have to have that thing. अगर हम ऐसे चोरी चकारी करें, जब even when we'll be working in an office, चलो चलें, गए अपना बैग रखा, 10 मिनट्स की जगह पे 30 मिनट्स ब्रेक ले लिया. Now we have to change the way we think, right? We have to think. हाँ एग्जैक्टली. यू नो फिर बोलते मैं निकाल दिया, क्या करेंगे फिर? आपकी कंपनी होगी, आप क्या करोगे? सो बी एन एम्प्लॉई दैट यू वुड लव टू हैव एन एम्प्लॉई एज. यू नो इट्स अ लर्निंग ग्राउंड. नॉट नेसेसरी ना फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल कीप वर्किंग. प्रॉब्ली आप 5 years 10 years काम करेंगे, देन यू विल हैव योर ओन बिजनेस, राइट. दैट इज द टाइम दैट यू विल लर्न, यू नो, हाउ टू engage your employees and you know how to work in an organization, so on and so forth, right. फीडबैक रिपोर्टिंग हमें पता ही है, रिपोर्टिंग मैनेजर्स होते हैं, उनके फीडबैक्स जाते हैं, रिपोर्टिंग्स होती हैं. एंड देन द चांस ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ट्रेनिंग पे भेजते रहते हैं, कोई आउटबाउंड ट्रेनिंग, इनबाउंड ट्रेनिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि जिससे कि आपका जो है नॉलेज बेस. अभी तो ठीक है, अब चैट जीपीटी अब जैसे आया तो आपने देखा होगा बहुत एड्स आती हैं, जतन शाह, ये बहुत लोग अपने अपने कुछ पैकेजेस दे रहे हैं कि हम आपको सिखाते हैं चैट जीपीटी कैसे करना है. ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं. एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू गाइज ऑल्सो वांट टू लर्न समथिंग, आई एम देयर, यू गाइज कैन गेट इन टच विद मी एंड देन प्रॉब्ली वी कैन शेड्यूल समथिंग एंड आई विल सी. वो जितना भी बैन करें, ये बैन होने वाली चीज़ नहीं. इट्स लाइक यू आर बैनिंग गूगल, है ना. कब तक करोगे? सॉरी. So what do you think Google does? What do you think Google does? जब भी हम किसी भी ऐप में साइन इन करते हैं तो उसमें सीधा आ जाता है कि आप अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन करेंगे, आता है. हम किसी भी ऐप पे जाते हैं, सीधा साइन इन का कैसे आता है कि आप अपना अकाउंट मत बनाओ. कैन वी साइन इन फ्रॉम योर एप्पल? कैन वी साइन इन फ्रॉम योर जीमेल? राइट. व्हाट आर वी डूइंग? Correct. Moving forward, continuous improvement. We understand it is required in life also. कि जो भी अगर हम कुछ आज जो गलतियाँ करें हम दोबारा ना करें उन्हें, क्योंकि पहले गलती होती है फिर ऑफेंस होता है. फर्स्ट टाइम इट्स अ मिस्टेक, देन इट्स एन ऑफेंस, राइट.
अलाइनमेंट होनी चाहिए, जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है उसके साथ हम जो परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं उसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए. वी कांट मेजर एप्पल टू एन ऑरेंज. आप किसी एम्प्लॉय को एक काम दे रहे हो, यू हैव टू मेक यू नो आप इफ देयर इज समबडी इज अ कोडर, उसके कोडिंग का काम है और आप उसको एनालाइज कर रहे हो उसके प्रेजेंटेशन स्किल्स पे. इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि हर एक को बहुत ही अच्छा ओरेटर होना ज़रूरी है, हर एक को बहुत ही ऐसे लोगों को एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है. कितने लोगों को एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है? कई लोग बोलते हैं ना पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, बोलना आना चाहिए. ठीक है, आना चाहिए, बट इतना ज़रूरी है नहीं. वैसे हमेशा थोड़ी हम वो क्या उसका क्या नाम है, who's this guy? हाँ, so that's what I'm trying to say कि अगर कोई कोडर है, if there's somebody who's an introvert who's doing coding, who's involved into coding, we expect that person, we evaluate that person on his or her presentation skills. Will it be a good idea? उसका काम वो डेडिकेटेडली कर रहा है ना कोडिंग का, ठीक है. हर एक को थोड़ी ना वो who's this boy, who's this man, बिंद्रा, what's his name? हाँ, not everybody has to be कि हाँ हम सक्सेसफुल होना है हमें, not needed ना. We can do back end work, we can sit quietly and do our work, and this is how we can be evaluated. So the point that I'm trying to make is performance management has to be in line with what task is given to you. The accountability is also very important. बहुत बार होता है कभी कुछ काम गलत हो गया, मैंने नहीं किया, मैंने किया ही नहीं, उसने किया है. सी, आप कुछ भी करें, टेक ओनर्स ऑफ इट, बी अकाउंटेबल. चाहे बिजनेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो. ब्लेम गेम्स कांट टेक यू वेरी फार. अकाउंटेबिलिटी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. एजिलिटी कि आप किसी कोई पर्टिकुलर टास्क को कितने एजाइल होके करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, कितनी डेडिकेटेडली करते हैं. अकाउंटेबिलिटी अच्छा ऐसे नहीं होना चाहिए कि अच्छा हुआ तो मैंने कर दिया और बुरा हुआ तो टीम मेंबर की वजह से ये हो गया था. नो, इट शुड बी लाइक अच्छा है तो भी, हाउ डज धोनी डज ना, उसके कितने वीडियोज़ आते हैं, वो ट्रॉफी अपनी टीम को दे के पीछे चले जाता है. आई होप आई एम गिविंग राइट क्रिकेट एग्जाम्पल्स. आई एम जस्ट आई थिंक द बॉयज़ वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज एग्जाम्पल्स. पीएनजी की क्या स्ट्रैटेजी है? द कस्टमर इज बॉस. पीएनजी के क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं बताओ, देख के बताओ. हाँ, टाइड, पैंटीन, हेड एंड शोल्डर्स, बहुत से, चार्मिस, ड्यूरासेल, देयर आर वेरियस प्रोडक्ट्स. व्हाट दे हैव कंसिडर्ड इज, इनकी जो टीम है ना, इट इज जस्ट फोकस्ड ऑन एनालाइजिंग द कस्टमर्स डिमांड. दिस इज ऑल दैट दे आर एनालाइजिंग. अगर परचेज कर रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, कितनी डिमांड आ रही है, क्या रिकॉल हो रहा है प्रोडक्ट, क्या वापस से डिमांड आ रही है, कैसे पता चलता है. अगर अब तो खैर ऑनलाइन हो गया, अदरवाइज जो ऑफलाइन स्टोर्स होती थी तो ये लोग क्या करते हैं, इवन इफ यू स्टडीड फ्रॉम IIMs, अगर आपका ITC में जॉब लगा है, योर फर्स्ट टास्क वुड बी कि ये सनफीस्ट के जो बिस्किट हैं ये हर एक गांव कूचे गली में भी ये सनफीस्ट का पैकेट होना चाहिए. वो लोग बसों में धक्के खाते हैं, वो लोग जाते हैं और वो वहाँ पे स्पेशली समबडी हुज फ्रॉम नॉर्थ, वो कोई साउथ के किसी एक गांव में जाके वो इंश्योर करता है कि ITC का ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं. सो PNG व्हाट दे इम्प्लीमेंटेड, दैट कंज्यूमर इज बॉस. वो उसी के डेटा को एनालाइज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग दे विल हैव देयर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसी के अकॉर्डिंग दे विल रिवॉर्ड देयर एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट, एंड अकॉर्डिंगली दे विल फॉर्म दी स्ट्रैटेजीज. नेटफ्लिक्स सिमिलरली, नेटफ्लिक्स ऑल्सो जो भी हम लोग उसमें देखते हैं तो डेटा उधर जाता है कि इस पर्टिकुलर अकाउंट से कितनी देर तक स्ट्रीमिंग हुई, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें हाँ सजेशंस भी आते हैं कि अच्छा अगर आपने कोई मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर इरफान खान की मूवीज़ देखी हैं तो आपको 4 और आ जाएंगी. और अगर आपने, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस दिस, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक ऐसी मूवी नेटफ्लिक्स पे सर्च कर रही हूँ जो नेटफ्लिक्स पे नहीं है, तो वो आपको उसी की सिमिलर 2-3 मूवीज़ आपको बता देते हैं. उनकी कोशिश रहती है कि ये कस्टमर चला ना जाए. ठीक है, X मूवी आप देख रहे हो बट ठीक है वो नहीं है हमारे पास, बट वील इंश्योर कि X1, X2, X3 सिमिलर मूवी या सिमिलर जॉनर की मूवी वहाँ पर हो. राइट, ये किसको पता है ये ब्रांड? देखिए किसी ने यूज़ करा है कभी?
केश किंग नहीं करा किसी ने यूज़? हाँ, we'll come to that. डॉक्टर ऑर्थो किसने यूज़ करा है? और क्या है? पेट सफा क्यों नहीं करा आप लोगों ने यूज़? एग्जैक्टली क्यों इस सबसेट ने यूज़ नहीं करा है? सी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज कि अभी आप हैंड्स फॉर जो आप लोग देखिए अभी ना यू हैव टू फोकस ऑन कंज्यूमर इनसाइट. अभी सिंस यू आर learning business, you will join a business, or many of you will have a business, you have to focus on the consumer insight. आपके कंज्यूमर कौन है? वो आपकी एक तरह से एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत चीज़ें बताते हैं. So now we'll watch certain videos, okay? ख्याल तो रखना पड़ता है. सिर्फ चाहने से क्या, चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने. तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे तभी तो बाल मजबूत बनेंगे. इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से. केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया उन्हें लंबा, काला और घना. केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स. देखो अभी आप लोग जब ये एड्स देख रहे हो ना, डोंट वॉच दीज एड्स एज इफ ये एक मूवी के बीच में या एक शो के बीच में एक एड आ गई है. सो द होल पर्पस ऑफ मेकिंग यू वॉच दीज एड्स इज सो दैट यू थिंक लाइक एज इफ दिस इज़ योर कंपनी एंड ये आपके एड्स हैं. ठीक है, अभी और बाकी एड देखते हैं. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल. घुटना, कंधा, कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी एनर्जी. एक भरपूर जिंदगी. ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि. डॉक्टर ऑर्थो. अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में तुम कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है. इसे इग्नोर मत. 15 खास टेक्निक्स बना पेट सफा आयुर्वेदिक जड़ी. आज ही ले पेट सफा पहली रात से ऐसे दिखाता है और इसकी आयुर्वेदिक कीमत भी पेट सफा हर रोग दफा. अरे भैया, एक बात बताओ अभी आप लोग, what is one thing that you, what is your analysis out of it? What did you, so you tell me. 3 ads दिखाए मैंने आपको. What is your insight? Yeah, you. Inside means they are advertising their product and based on the different segments. I mean, someone in different segments, someone are different segments. But ultimate goal is to sell the product. Right? अभी हम लोग एकदम मार्केटर्स की तरह बात करेंगे. हम डिफरेंट सेगमेंट. एक मिनट, आई गिव एवरीबडी अ चांस. हम सेगमेंट नहीं बोलेंगे, हम स्पेसिफिक बात करेंगे. नाउ वी हैव टू इंश्योर कि हमारी जो टर्मिनोलॉजी है विल बी एक्सट्रीमली टेक्निकल. राइट? अब आप बताएं दोबारा से. नहीं, अभी यू वेट, यू टेल मी. सेगमेंट मीन्स एज बैक की आप बात कर रहे हैं, जेंडर की बात कर रहे हैं. Age, gender, and then type of users. हाँ, आप बोल रहे थे. Basically, the company is targeting the main key point of consumer and connecting the main basic brand with the consumer so that they can interlink that yes, this brand is particularly made for us. ठीक है, एंड यू. All these 3 ads basically first started making the customers aware about what their product is related to. Then they specifically targeted which audience they want to look for. And they, all of them differentiated each of them with other products that it's not like a startup. So you may be able to use it for
Anyone else wants to add? Sorry? वो तो हाँ ठीक है, आप बताओ. Then they are emphasize on the Ayurvedic medicine. अच्छा हाँ आप बोलो सब. मैडम कोई डाटा अवेलेबल है? सर विल शेयर द डेटा ऑल्सो. हाँ बताइए. जैसे ये एडवर्टाइजमेंट चली, अब हेयर ऑयल का बेसिकली क्या है कि उन्होंने एक्ट्रेस वो ली जो मतलब गर्ल्स को नीड होती है, मतलब फोकस होता है कि हाँ हेयर अच्छे हो हमारे, एंड जैसे ऑयल के लिए उन्होंने एक एजेड पर्सन को लिया जिससे वो स्पेसिफाई कर सके कि इस एज की कैटेगरी के लिए ये यूजफुल ज़्यादा होगा. इस तरीके ठीक है चलो. एक बात बताओ आप लोग, इसमें आपने कॉमन चीज़ जो देखी, इसमें एज क्या दिखी है आपको? 40 35 40 प्लस. ठीक है. जो केश किंग जो तेल होता है, आई हैव यूज्ड इट. इट इज़ फॉर द हेयर फॉल, राइट. इन्होंने एड में दे हैव टेकन एन एक्ट्रेस, बट इट इज़ यूज्ड सबसे ज़्यादा बाय मैन. ठीक है, बाय मैन, because men are more prone to a hair fall. And what they have done is, the target is, the TJ is people who are 35 plus. Especially जो ये जो प्रॉब्लम होती है men को ज़्यादा होती है हेयर फॉल की. एंड आप देखोगे जब 35 अराउंड जो ये एज ब्रैकेट होता है ना, अब तो खैर विद फीमेल्स ऑल्सो, अ मैन इज़ वेरी इनसिक्योर. शादी हो रही है, कमाई करनी है, जॉब ढूंढनी है, जैसे सोचा था वैसे हो नहीं रहा है, घर के नीड्स हैं, चाइल्ड की एजुकेशन है, फीस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. व्हाट दैट लीड्स टू? इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. मेंटल जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो हेल्थ पे भी रिफ्लेक्ट करती हैं, राइट. हेयर फॉल इंक्रीज होता है. उन्होंने आपने देखा होगा कि ये जो इन्होंने डॉक्टर ऑर्थो बनाया, ये भी ये ऐसी एज, इन्होंने हर एक एज के ना जो प्रॉब्लम है उनको टारगेट किया है. आपको ये कितने, ये जो कंपनी है इसके ओनर के बारे में पता है आप लोगों को? कितना टर्नओवर होगा? इट्स लाइक अ मोर देन 3000 करोड़ कंपनी. सुना भी नहीं है ना आप लोगों ने नाम? डॉक्टर ऑर्थो. अगर आप ये वाली ऐड देखेंगे पेट सफ़ा वाली, इन्होंने क्या किया कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली लोगों को प्रॉब्लम होती है, बट दे डोंट discuss. What they have done in their ad, they started with a joke. एक कॉमेडी एंगल उन्होंने देके इसको स्टार्ट किया. अगर आप इसके लोगों को देखेंगे तो आप देखेंगे देयर इज़ अ कमोड. कमोड पे देयर इज दिस बॉय सिटिंग ऑन अ कमोड. क्लियर है कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन. दिस इज द प्रॉब्लम दैट दे वुड सॉल्व. डॉक्टर ऑर्थो है, दिस इज द प्रॉब्लम दैट दे वुड सॉल्व. इनका जो हेयर भी है, वो भी हेयर ऑयल है, वो भी ऐसा है दैट दे क्लेम कि दिस इज द प्रॉब्लम दैट दे वुड सॉल्व. एज मार्केटियर्स, एज स्ट्रैटेजिस्ट, व्हेन यू विल बी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू थिंक ऑन दोज लाइन्स कि कंज्यूमर इनसाइट. देखो कोई एक प्रोडक्ट होता है ना, वो हमेशा वो क्लेम नहीं. देखो जैसे बॉर्नवीटा है या माइलो या कोई भी हेल्थ ड्रिंक आती है, कस्टमर कौन है? Customer is mom, consumer is kids. Customer consumer अलग है यहाँ पे, राइट. आप उन्हें कैसे, आपने इन्होंने कंपनी को सेल आउट करा, टॉलर, शार्पर, ब्राइटर, राइट. अब अगर मदर को बोलो कि आप अपने बच्चे को ये पिलाओगे, लंबा हो जाएगा. बच्चे को लेना देना नहीं है क्या है टॉलर, ब्राइटर, शार्पर से. बच्चों को क्या करना है? 5 year old kid और 6 year old kid, राइट. उनको क्या है, आप मदर को टारगेट कर रहे हो, आप कस्टमर को कर रहे हो जो यूज़ नहीं करेगा. वो ले रहा है अपने बच्चों के लिए, लेकिन आप उनको समझा रहे हो कि आप ये पिलाओगे ना तो टॉल हो जाएंगे, ब्राइट हो जाएंगे, शार्प हो जाएंगे. आप इधर आपने क्या किया, आपने मदर के इंस्टिंक्ट्स के साथ यू हैव प्लेड हियर. अ मदर वुड वांट द चाइल्ड टू बी स्मार्ट, हेल्दी, टॉल. क्या वो प्रोडक्ट में उन्होंने लिखा कि ये प्रोडक्ट से हम इतनी कैलोरीज, मतलब इतना न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये है? दे हैव प्लेड ऑन व्हाट? इमोशंस. हेयर ऑल्सो व्हाट दिस प्रोडक्ट इज डन, दे हैव प्लेड विद द इमोशंस. अ मैन हु इज इन द मिड एज में है, बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ होते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल, सबको होते हैं. देयर इज नथिंग कि हो क्या बात हो गई, इट्स वेरी नॉर्मल.
what they've done कि we will take care of your insecurities, be it a hair fall, be it your gut health, be it your आपके bones की जो situation है. और इनका एक और भी एक product आता है रूप कांति करके शायद से आता है. It's for the right. इन्होंने now this particular brand is eventually sold to Emami. उन्होंने ये sell off कर दिया है in millions of dollars. However, these are certain examples जो आप लोगों को ना now you have to start thinking on these lines. Now you're no longer students. See, मेरे लिए you people are no longer students. Now you are all set to go and join the real world. मैं तो ये भी आप लोगों को advise करूँगी, if somebody is already working, you should network amongst each other and you can share your resumes with each other as well. If somebody can help you with that. So what is the other insight that you got from this? देखिए जब आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना कि बाल, ये बहुत टॉल क्लेम्स होते हैं और अगर आप इन पे फेल हो गए ना आपके प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं. दिस इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज एथिकल प्रमोशन और एथिकल मार्केटिंग. कि क्या है वो, एक तो ऑनेस्टी कि वो लोग बोल रहे हैं कि अगर आप ये इसकी टैबलेट्स इसकी दाने खाओगे पेट सफा के तो यू विल गेट द रिलीफ. ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि अच्छा ले गए नहीं हुआ तो दोबारा आप लेने आओगे, आप नहीं करोगे ऐसा. यू विल नॉट गो एंड बाय. एंड समथिंग इट हैज़ अ एथिकल प्रमोशंस कैसे होते हैं, इट इज जनरली लाइक द प्रिस्क्रिप्शन थिंग्स, राइट. कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं हम केमिस्ट के पास जाते हैं वो वाली दवाइयाँ लेकर आते हैं. ये एक तरीके का वैसा ही प्रोडक्ट है. हाउएवर इट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, बट जो ये क्लेम कर रहे हैं कि घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, योर गट हेल्थ वुड बी गुड, और फॉर दैट मैटर योर हेयर वुड बी रियली गुड और हेयर फॉल नहीं होगा और ये सब चीज़ें होंगी. दीज आर वेरी टॉल क्लेम्स. अगर इनमें कुछ भी गलती होती है, रिजल्ट्स वैसे नहीं आते जैसे आने चाहिए, देन दिस प्रोडक्ट विल, ये बहुत पहले ही फेड ऑफ हो जाता, राइट. अगर कोई कंपनी 3000 करोड़ तक टच कर रही है, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न, राइट. देयर हैज़ टू बी अ रीज़न. एंड नाउ एज अ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास आप लोगों को इसी रेंज में सोचना है. समझ रहे हो? 10 साल तक जॉब करोगे बहुत अच्छी बात है, उसके बाद तो यू विल स्टार्ट कि चलो अपना कुछ करते हैं, ऐसे करते हैं, राइट. तो यू हैव टू थिंक ऑन दोज लाइन्स कि वो उन्होंने कर लिया हम भी कर लेंगे. अब एक लेगिंग्स आती हैं, लड़कियों को पता होगा, गो कलर्स. अच्छा नहीं, गुड. नो आई अप्रिशिएट, यू शुड ऑल्सो नो, यू शुड बाय फॉर द फीमेल और द फैमिली, राइट. सो गो कलर्स एक ब्रांड है जिसके लेगिंग्स आते हैं एंड पैंट्स आते हैं और बहुत सारी ऐसे, उनका एक प्रोडक्ट है इन मल्टीपल कलर्स. एक प्रोडक्ट है ना, लेगिंग्स है जो सूट के नीचे हम लोग पहनते हैं और वो मल्टीपल कलर्स. उनका क्या है कि एक प्रोडक्ट बना दिया. अब लड़कियों को होता है कि हमारे पास हर चीज़ हर कलर की हो, ठीक है. पिंक टॉप है तो एक क्लिप भी पिंक हो जाए, रबर बैंड भी पिंक हो जाए, लिपर भी पिंक हो जाए. ऐसे ही व्हेन इट कम्स टू लेगिंग्स उन्होंने हर कलर में बना दिया. उनका क्या लगा, एक प्रोडक्ट है, डाई तो करनी है बस. कोई एक आएगा पहली बार हेजिटेट करके कोई लेता है, नहीं हमें सिर्फ ब्लैक और वाइट चाहिए, यही लेते हैं ना मोस्टली, ब्लैक एंड वाइट ही ज़्यादातर काम आती है. फिर कहते नहीं हमें पिंक भी चाहिए, हमें येलो भी चाहिए. एंड ग्रेजुअली व्हाट देव डन, दे हैव जस्ट मैन्युफैक्चर्ड वन प्रोडक्ट इन मल्टीपल कलर्स. यू गाइज कैन ऑल्सो डू दिस. मान लो SOL की टी शर्ट्स हैं, बनानी है, एक लिया उसे प्रिंट किया, आपस में क्लास में बोल दिया भाई दिस इज़ फॉर $250, 50 रुपीज़ का मार्जिन रख लिया, सेल ऑफ कर दी. कुछ भी कर सकते हैं ना इस तरीके से. तो दिस इज़ अबाउट दी कस्टमर इंसाइट्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन, राइट. सो डू वी हैव टाइम फॉर अ केस स्टडी डिस्कशन? सर ये तो हर जगह है. आप सरोगेट मार्केटिंग करें, आप सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हैज़ टू डू विद व्हाट, इट हैज़ टू बी, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, इट इज़ अबाउट स्ट्रैटेजी, राइट. इट इज़ अबाउट मैनेजिंग दैट स्ट्रैटेजी. किसी भी, दैट्स व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास कि ये वाला पर्टिकुलर कोर्स आप सेकेंड ईयर में देखेंगे, आप फर्स्ट ईयर में नहीं देखेंगे. क्योंकि जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तब आपको HR भी पता होना चाहिए,
आपको मार्केटिंग भी पता होना चाहिए, आपको फिनेंशियल भी पता होना चाहिए. बहुत लोग जब सुनते हैं बिट्टा पैट तो चक्कर आ जाता है. किसको आता है? गुड. ठीक है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है. So it is assumed that when you are into, when you are reading strategy, when you are reading strategic management, all these fundas are kind of clear. अच्छा, there is one more thing. Amazon पे कभी किसी ने कुछ सर्च करते हैं, मान लो ऑयल, कोकोनट ऑयल सर्च किया, क्या आता है सबसे पहले? कौन सा तेल आता है? मैं शेयर करूंगी आपके साथ, डोंट वरी, आई विल शेयर. पैराशूट आता है? क्या सिर्फ पैराशूट ही बना रहा है कोकोनट ऑयल? राइट, ठीक है. अभी आप एक काम करना, दिस इज़ अ होमवर्क. जब आप कुछ भी एक प्रोडक्ट सर्च करना, आप उसे 10th पेज पर जाना कि 10th पेज पर कौन सा कोकोनट ऑयल सेल हो रहा है. एंड देयर इज़ अ प्रॉपर स्ट्रीम इन विच व्हाट दे डू इज, दिस इज़ कॉल्ड डेटा स्क्रैपिंग. आप उस पर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आई ट्राई, अगर मुझे अभी याद आता है तो आई टेल यू. जितने भी इस पर्टिकुलर पेज पे जितने भी डिटेल आती है ना, उसके पूरे एक एक्सेल बन के आ जाती है कि ये प्रोडक्ट है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये रेटिंग है एंड एवरीथिंग. और ये आप लोगों को बिठाया जाएगा बाद में, अगर आप किसी ऐसे मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, कि ढूंढो कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट है. कोकोनट ऑयल पे पैराशूट ही क्यों आ रहा है? सॉरी सर, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दी हेयर ऑयल. अगर कोकोनट हेयर ऑयल हम सर्च करते हैं, चाहे कोकोनट ऑयल डालो तो वो पैराशूट ही आता है. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज दे हैव डन दिस काइंड ऑफ अ मार्केटिंग, राइट. दे पे एक्स्ट्रा. आपका कोई ब्रांड होगा, जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, आप कुछ भी सर्च करोगे ना, वो आएगा पहले. नहीं, एल्गोरिथम में तो वो तो एकदम, वो जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है वो तो है, लेकिन अगर so let's just quickly do this case study. Can you guys, are you able to read this? It is about what all we have discussed. Netflix है, पहले DVD में था, अभी ये आ गया. What are the changes over the years? What all changes are done over the years? कैसे उन्होंने लीडरशिप आई, कैसे उन्होंने अपने सब्सक्राइबर ग्रोथ इंक्रीज की. स्पेशली ड्यूरिंग कोविड इनके सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा increase with. So let's discuss these questions. पढ़ लिया आप लोगों ने पहले? What exactly they did was that they started having a higher control on the library, on the streaming videos. उन्होंने अपनी जो टीम थी वो वैसे strategize करी कि now they were totally focused on streaming new programs, new movies, customer analysis, कौन से customer कौन सी country में कौन सी चीज़ ज़्यादा देखते हैं, कितने टाइम तक उस पर्टिकुलर उसमें रहते हैं. आप देखा कि हम लोग कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब पे वेट नहीं करते, स्किप ऐड कर देते हैं जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हमें देखना होता है. वी कांट इवन वेट बियॉन्ड 5 सेकेंड्स, हम स्किप वीडियो कर देते हैं. इसका भी सॉरी हाँ राइट. तो हमें उसे क्या पता चलता है? बिकॉज it shows our keenness to watch that particular thing. These all things there is huge data analytics team who sit at the back end and who try to understand what the customer or what the consumer is willing to watch. तो उसी तरह की चीज़ें आपको और ज़्यादा वो आपके फीड में देते जाते हैं, right? So these are few. एक मैडम थोड़ा सा इसके ऊपर
Sorry? Strategic management, proactive or reactive? Sir, it has to be both. Because see, हमने पढ़ा radical and incremental, right? Radical क्या चीज़ें होती हैं? Radically strategize हम क्या करते हैं कि अभी एक problem आई and तुरंत हमने उस पर radically react किया. For instance, जब जैसे ही demonetization हुआ था, overnight Paytm ने टाइम्स ऑफ इंडिया को फुल पेज ऐड देने के लिए बोल दिया था. अराउंड शाम को जैसे अनाउंस हुआ, उन्होंने सीधा उनको वहाँ से टाइप किया. इट वॉज अ रेडिकल स्ट्रैटेजी दैट दे हैड, राइट, कि कल सुबह फुल पेज पे ये ऐड आनी चाहिए कि पेटीएम इज़ देयर फॉर ऑल योर डिजिटल ट्रांजैक्शंस. दे नेल्ड इट एट दैट टाइम, राइट. दे मेड द मोस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर विंडो दैट दे गॉट. इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक बार प्रिंटिंग के लिए जब चीज़ें चले जाती हैं उसके बाद ये बहुत मुश्किल होता है कि आप एक ऐड उसमें ऐड मतलब फर्दर यू आर एडिंग इन टू इट. एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट बिकॉज I have also worked with Times Group for a brief period and I understand how these things work. So when I talk about incremental, कोई problem है जो शायद से इतनी urgent नहीं है but incrementally we can resolve it. For example, पहले ही होता था कि अगर फ़ोनपे का QR है और किसी स्टोर पे पेटीएम का QR है तो आप नहीं कर सकते थे. आप कर सकते हैं? किसी Proactive or reactive? Sir, this is I'm talking about proactive and reactive both. What is proactive? Proactive is कि आज Take the case of Paytm. right. Reactive or proactive? अलग-अलग थोड़ा-सा differentiation Sir, I'll tell you what. Reactive is something कि अभी ये problem आई है. This is reactive. For example, proactive है कि for example you're the first mover, right? Reactive हो गया कि ये एक हमारा QR है, ये नहीं चल रहा है. Now you have to react on this problem, right? And when how you're doing it, आपने QR को पूरा flat कर दिया. आप किसी से भी किसी को भी किसी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, चाहे पेटीएम का QR लगाओ, चाहे भारत पे का लगाओ, कुछ भी लगाओ, आप उस पर यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस दीज क्वेश्चंस. हाउ डिड नेटफ्लिक्स स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इन्फॉर्म इट्स डिसीजन? ग्रुप कर लें अभी इसमें. सो क्वेश्चन 1 आप लोग, ठीक है, यहाँ पे इधर, ठीक है. क्वेश्चन 2 आप लोग. क्वेश्चन 3 पीछे के लोग, ये दैट एंटायर ग्रुप who is busy chatting their way throughout the class. ठीक है, अभी इधर आ जाओ आप लोग. Question 3 and question 4 is for you guys. All right? Are you able to read it? Question 3 आप लोगों से पूछूंगी मैं. The one who is having a chewing gum without sharing with the class. It is, in what ways has Netflix fostered a culture that supports its strategic objectives of innovation and customer satisfaction? So I have given a cue also that you can reflect on the cultural elements that might be necessary to support continuous innovation, risk taking. Since we can't make smaller groups, तो आप individually मतलब दो के ग्रुप में भी फोर्थ क्वेश्चन आप ये पूरा जो है यहाँ पे आप डिस्कस करिए. सेकेंड क्वेश्चन इज़ फॉर यू एंड थर्ड इज़ फॉर द पीपल हु आर देयर. Shall we discuss the first question? Are we ready with the first question?
Shall we discuss? ठीक है? Okay, so how did Netflix strategic analysis inform its decision to transition from DVD rentals to streaming and subsequently to content production? Who's coming here? You'll come? Come. Let's start. Hello, my name is Varun Naran, and I am here to discuss the case study regarding Netflix. Okay, guys, now. And the Netflix has observed the consumer behavior, how the consumer has changed nowadays because we are tech savvy and we have access to the internet. So that's why they implement the strategy according to the crowd of our global market. Next, the technology advancement. We all are the pro in the using all this technology like tabs and mobile phones. So they adapted according to the consumer demands. And financial resource, the data they are provide us for the minimum prices. That's why everyone have the access to buy the streaming and the content. So they analyze the Indian price sensitivity market also. People are not willing to spend large amount on the Correct. the buying the data or content. So they keep the bracket low and emphasize more Indian consumer, those who are spending their time on the screen, or they are more fond of finding the other content like documentaries and another, you can say, the comedy shows. And the next one is internal capabilities. Nowadays, people are more curious about to learn new things. So Netflix adopt their strategy as per reading the consumer, like those who are in this age group, suppose 15 to 25, they have separated the content according to them. Right. Those who are 25 to 35, they separated and their need has to be met there. Right. The internal capabilities means internal resources that they have. Internal resources. Internal resources to analyze, to have your team. And we have also, the internet is very small amount, like Geo, everyone can afford. So we have access to the internet. And Netflix, earlier we have to, buy the DVDs. But nowadays, this is vanished in the market. So they know the Indian crowd, they have laptops and all technology. And that's why. Thank you. Now let's discuss the second question. Who's coming? What role did Netflix organizational structure play in its ability to adapt and implement its strategy of producing original content? Who's coming? Come. Anyone? So yeah, the whole point of doing these exercises, abhi hamari class, we have a huge class and we are not able to, I don't know how many of you even have each other's numbers for that matter, right? Otherwise, these are the exercises that I could have given you for a homework, और आप teams में खुद ही presentations बना के यहाँ पे present करते. Since we do not have the luxury of doing that, so I would really appreciate कि जब ऐसे कोई discussions होते हैं तो आप लोग आपस में भी discuss करके, क्योंकि eventually से यहाँ पे भी हम जो करें it's a prototype. When you will go and start working there also you have to work in teams. बहुत लोग अच्छे लगेंगे, बहुत नहीं भी लगेंगे. But we have to learn to adapt and to get our ways through it, right? Yeah, please. Please introduce yourself. I am Ashwani. Right now I'm working with some healthcare organization right now. Correct. Okay, so I'm just going to elaborate some questions here. Right now. What role did? First of all, global expansion. For that, they need to know the culture of that country. If you some of the companies going in some other countries, they need to know the culture of that country, and for that Netflix has to research on that. And after that, they should know the content, what type of content in that country is running at that moment, so that they can research on that, and after that they can analyze
how to start their product in that country. You want to add? Please add. How to build a team. Oh, you can come. And Come. after that, No, it's okay. Come. Come. It's okay. Yeah. Please continue. after that, they should research about the Come government here. policies as well, so that उसके अंडर रह के उनको कैसे काम करना है वो भी उनके लिए ज़्यादा मतलब इफेक्टिव रहेगा. आफ्टर दैट उनको एक टीम बिल्ड करनी होगी उसी कंट्री में लोकल पीपल के साथ, सो दैट कि वहाँ के कल्चर को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं और उनसे कोऑर्डिनेट करके आफ्टर दैट वो रिसर्च करेंगे एंड वो जो उनकी टीम होगी वो उसको आगे लेके जाएगी उस चीज़ को और कंटेंट को ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे उस टाइम. एंड नेटवर्किंग इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगी क्योंकि नेटवर्किंग से हमें ये पता चल पाएगा कि वहाँ के लोगों का नेचर कैसा है और नेचर से हमें ये पता चलेगा कि उन लोगों को कंटेंट किस टाइप का पसंद आएगा और हम वहाँ पे लोकल जो वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स होंगे उनसे भी हम कनेक्ट कर पाएंगे सो दैट कि हम कोई अगर कंटेंट उनका बहुत अच्छा है सो दैट दे कैन बाय द कंटेंट एंड इस चीज़ पे उन्होंने काम किया. So this is one aspect to which anyone. Thank you so much. Somebody else wants to add to it? I mean, any organization you can add LMS, learning management. Correct. So that would be one of the benefits. Right. It will increase even organization productivity. They can grow more faster. They can create a content based Right. on the customer intent. Right. Customer asks and customer needs. So here, we can also talk about talent acquisition. That when you are coming up with something new, तो आपको talent भी तो नया चाहिए ना. अगर आप एक data analytics पे अगर आप focus करेंगे, then you need people who have an hands-on experience on data analytics, right? Now let's discuss the third question quickly. Yeah, please come. देखो अभी आप लोग संडे को आ रहे हो तो ROI तो पूरा लेके जाना है ना क्लास का. ऐसे तो हम कहीं भी बात कर लेंगे. ROI हर तरीके से फ्रेंड से मिलना भी ज़रूरी है पर पढ़ना भी तो ज़रूरी है ना. हाँ जी बताएं, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. नेटफ्लिक्स से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि नेटफ्लिक्स जैसे ही इंडिया में आया उसने क्या प्रॉब्लम फेस की करंट इंडस्ट्री को देखिए, उसने कैसे इंप्रूव किया और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया. फर्स्ट ऑफ ऑल नेटफ्लिक्स ने पहले देखा वेयर वी आर. नेटफ्लिक्स इस समय कहाँ पे पोजीशन करता है कंपैरिजन टू अदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज और वेयर वी वांट टू गो. नेटफ्लिक्स को अंत में कहाँ जाना है ताकि जो और इस जो ब्रिज गैप बनता है वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. जैसे ही ब्रिज गैप को पूरा करते हैं उस प्रोसेस उस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को इंडस्ट्री इंप्रूवमेंट बोला गया सक्सेस के इसमें नेटफ्लिक्स में. यहाँ तक क्लियर है कि हमें क्या करना और हमें कहाँ जाना है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, टीम ने भी डिस्कस किया होगा ना. वही बता. आप भी आए मैम, आप ही, आप पीछे तो कोई है ही नहीं. आप मैं क्वेश्चन तो वो आंसर दे देगा, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ. जैसे मैंने बताया हम कहाँ पे और हमें कहाँ जाना है. ठीक है, इसके 5 वैसे तो काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कि मैनेजमेंट में किस तरह से प्लान बनाएगा और हमें क्या क्या अचीव करना पड़ा, पर बेसिकली मैं 5 लेके चलता हूँ. फर्स्ट हमारे पास रिसोर्सेज क्या है. नेटफ्लिक्स के पास रिसोर्सेज क्या है जो हम अपनी मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाएं कंपैरेटिव टू अदर इंडस्ट्रीज. थोड़ी मेरे वर्ड प्रोनाउंसिएशन हो जाता है. नो इट्स ओके, इट्स ओके. हाँ बढ़िया कर रहा है. तो हमारे पास रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या है. जैसे ही नेटफ्लिक्स को हमने प्लान बना लिया, पहले तय किया हमारे पास रिसोर्सेज क्या है और हमें किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल नेटफ्लिक्स ने जैसे ही, और ये मैं केस स्टडी से ही बोल रहा हूँ, नेट के जो अवेलेबल है, जैसे ही नेटफ्लिक्स ने अपनी कैटेगराइज किया कि हमें किस तरह के कंज्यूमर्स को टारगेट करना है, उसने अपने कंज्यूमर्स को पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आते हैं 25 से 35 के प्लस में जो सिर्फ घर पे बैठ के एक अच्छा शो एंजॉय करना चाहते हैं, उससे नीचे वाले जो गेमिंग एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर उससे ऊपर वाले जो फैमिली शो एंजॉय करना चाहते हैं. 3 पार्ट में गेमिंग ऑडियंस, नेटफ्लिक्स चिल ऑडियंस और दूसरा जो एक फैमिली ऑडियंस है. अकॉर्डिंग टू डैम उन्होंने अपने एक इन्फ्लुएंसर, जो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं उस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड उनको टारगेट किया. फॉर एग्जांपल जो फैमिली शो देखना चाहते हैं उनको उनके लिए टारगेट किया कपिल शर्मा शो. एक नेटफ्लिक्स का कपिल शर्मा शो आया होगा, सभी ने देखा होगा. उनका मोटिव उसमें they've given one show on Netflix.
there is इसका आंसर दो मेरे को। क्या बोल रहे हैं? पूछो तो जिन्हें पूछा कुछ मुझसे। मैम कह रहा मैं तो टीवी पे भी आता है कपिल शर्मा शो की बात कर रहा मैं नेटफ्लिक्स पे भी देखा। नहीं सी कपिल शर्मा शो जो है वो सोनी लिव पर आता है, बट उसका एक जो स्टैंड अप है, उसका एक सेट है, वो नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हुआ है। कपिल शर्मा शो एक टीवी पे आता है, बट उसने इन्फ्लुएंसर पर टारगेट किया ताकि वो अपने नेटफ्लिक्स की एडवर्टाइजमेंट करवा सके इंडिया में वो ऐसे इन्फ्लुएंसर पर टारगेट करना चाहता है जिनका रिकॉल के थ्रू वो सब तक पहुंच सके। फॉर एग्जांपल मैं एडवर्टाइजमेंट का इसमें वो एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल अगर ये चौक है, कोई बेचना चाहता है तो लोग चौक को नहीं जानते, बट जैसे ही और ना ही चौक को जानने के बाद वो खरीदेंगे, बट जैसे ही एक अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान इस चौक को बेचता है, ट्रस्ट तो उनका कभी भी नहीं बनता कि वो चौक जल्दी करेंगे चाहे शाहरुख खान बेचे अमिताभ बच्चन बेचे। बस जैसे ही वो नेक्स्ट टाइम शॉप पे जाते हैं या मॉल में जाते हैं तो उन्हें इतना इन्फॉर्म हो जाता है कि इस तरह की कोई मार्केट में चौक है, तो हाँ वो एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं, बट नेक्स्ट टाइम वो तभी खरीदेंगे जब उनके पास लगेगा हाँ ये वर्थ इट है। तो मैंने कपिल शर्मा का एग्जांपल इसलिए दिया कि ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स चला रहा है कोई शो तो वो बेस्ट ही होगा, बट अगर कपिल शर्मा आया है तो एक बार वर्थ इट होगा उसे देखना। और वो देखते हैं अगर नेटफ्लिक्स उसे अपने कंटेंट को अगर तुम तक पहुंचाने में सक्सेसफुल होता है तो वो आगे तुम्हें दिखाएगा और प्रॉफिट जनरेट करेगा। ये था पहला स्टेप। अब इसमें कोई डाउट? चलो गुड। चलो फोर्थ क्वेश्चन के लिए कौन आएगा? फोर्थ क्वेश्चन मैम आप आए। Let's discuss the case study. So Netflix, continuous innovation. So as we know, it started from DVD retail. So उसने बाद में क्या किया, मार्केट देखी कि मार्केट की डिमांड क्या है इस वक्त। मार्केट में उसने देखा कि लोगों को शोज देखने हैं, तो उसने क्या किया, शो शुरू कर दिए। जो लोगों को पसंद है वो शोज शुरू कर दिए, लोगों को दिखाया, सेगमेंट को टारगेट किया कि कौन से सेगमेंट को कौन से शोज देखने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर उसने इनोवेशन करने की कोशिश की, अगेन डीवीडी से यहाँ पे शोज पे आया। फिर उसने कहा कि ओके ठीक है लोगों को शोज दिख रहे हैं, बट एग्जैक्टली ऑडियंस क्या चाहती है, कौन से शोज देखना चाहती है, तो उसने खुद के ओरिजिनल शोज भी क्रिएट करने शुरू कर दिए। अब कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के उसने क्या किया कि जब भी कोई कस्टमर वहाँ पे आता है, अगर उसको शोज नहीं मिल रहे उसके मुताबिक जो उसको चाहिए, तो उसको रिकमेंडेशन दी जाती है कि ओके आप ये शोज भी देख सकते हो। एंड अगेन कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए उसने खुद के शोज भी प्रोड्यूस करने शुरू किए थे, विच वॉज दिस टेकिंग अगेन। ऑल्सो वो रिव्यूज़ भी लेते हैं कस्टमर के, कि रिव्यूज़ मतलब कस्टमर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, और कस्टमर को बेटर सेटिस्फैक्शन देने के लिए उन्होंने बहुत पैसे इन्वेस्ट करे इनोवेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, और कस्टमर क्या चाहते हैं अगेन रिसर्च के अंदर। दैट्स व्हाट आई नो। थैंक यू सो मच। यू वांट टू ऐड समथिंग? या See what we are trying to see all these cases. हाँ, thank you. हाँ, you come. I'll get back to you on this. हाँ, 1 second. I'm Akash, and right now I'm working in the Ministry of Culture. So I have some ideas for Netflix. So basically क्या है कि हमारे पास जैसे हम कोई भी डेटा सर्च करते हैं या जो भी डिटेल सर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग सर्च इंजन ऑपरेशन में वो सारा डेटा फेयर चल जाता है। देन उसके बाद क्या होता है कि बाकी जैसे नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज है, जैसे हम इंडियन सेगमेंट को उन्होंने टारगेट करने के लिए मल्टीपल लैंग्वेज थोड़े चेंजेस लाए अपने अंदर, और वो मल्टीपल लैंग्वेज के उस प्रेफर करा उन्होंने। और जैसे हमारा मतलब इंडिया जो है बहुत मतलब कंज्यूमर बहुत अच्छे हैं उसके, तो दैट्स वाई उन्होंने कल्चर बेस्ड जैसे अब कुछ लैंग्वेज जैसे मेरे को आइडिया है कि कुछ लैंग्वेजेस पे वो वर्क कर रहे हैं रिलेटेड वो तमिल्स, कन्नड़ एंड पंजाबी, ताकि वो उस सेगमेंट को भी कवर करें। राइट, थैंक यू सो मच। सी अभी योर फेलो केम हियर एंड ही मेंशन अबाउट दैट आई वर्क विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यार एक और चीज़ है जो ठीक है, we'll discuss this case study, but one more thing is very important that you guys need to know each other well. You are the first batch of MBA, right? Right, from SOL.
सो आपकी ना स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके alumni बेस में. Soon after 6 months you will be an alumni. You should have an alumni community. You know why these colleges or institutes are thriving? Because they're thriving on their alumni base. कि ये IIT के alumni हैं, ये IIM के alumni हैं. And you need to be, आप लोग silos में मत रहो. You should rather, I think there's a batch of 1600 students. आप लोगों को तो कितना strong foundational वो होना चाहिए ना, alumni base. Okay, coming back to what we were talking. See, the whole practice of this, this particular case study is, आपने देखा होगा her answer was related to a consumer insight. कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर क्या देख रहा है, कस्टमर की क्या डिमांड्स हैं, क्या प्राइस पॉइंट रखेंगे, कितने में रखेंगे. अभी कोई सर्च करके बताओ नेटफ्लिक्स का 1 month सब्सक्रिप्शन कितने का मिल रहा है, वन सिंगल स्क्रीन. 1 month. No. It's one screen, like one वो 1/4 something ना, 149 और something इतने का. हाँ, मोबाइल ओनली. मैं वही बोल रही हूँ क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग मोबाइल पे यूज़ करते हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी आप कुछ भी प्रोडक्ट अपने कुछ आप यूज़ भी करेंगे ना, तो आपको चाहे पेन हो, चाहे बैग हो, चाहे कुछ भी हो, एक तो कौन सी कंपनी का है ये उसका ध्यान रखना है, और एज ए कंज्यूमर आपको क्या लगता है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट. So with this we have come to the end of this session. So let's meet you in the next class. And meanwhile I would want you guys to do one thing. Amazon पे जाके कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करना and उसके 10th पेज पे देखना कि वो 10th पेज पे कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है. ब्रांड अलग होगा ना, आप देखना. हाँ, but you have to, this is what the analysis is, right? Okay, thank you so much everyone.